तो मार्केट में इतना ताकत है कि आपका पैसा 2 दिन में डबल भी कर सकता है। रिटेलर को उसका कोई नॉलेज नहीं है। हर कैंडलस्टिक आपको पैसा नहीं दे सकती, लेकिन मार्केट में कुछ एक पैटर्न ऐसे बनते हैं जो आपको लाखों रुपए दे सकते हैं। बड़ा प्लेयर सोचता है कि दे हैव 25 लाख एंड दे वांट कंसिस्टेंटली 25,000 एवरी डे, और हम सोचते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर कि मेरे पास 25,000 है, आई विल मेक दिस 25,000 टू द 25 लाख। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक आपका 1 मिनट में कर दिया, जो रात भर रिसर्च करते बैठते हैं, स्टडी करते बैठते हैं, इंडिकेटर लगाते बैठते हैं, नो यूज। Easy to understand. Yes. Is any rocket science to do this? अगर आपको बेस्ट ट्रेडर ऑफ द मार्केट बनना है तो you have to become the specialist in the something. Correct. There is no plan B. मान लीजिए अगर किसी ने अभी स्टार्ट किया, आज स्टार्ट किया ट्रेडिंग, जी, या फिर वो कुछ महीनों से कर रहा है, बट मतलब वो नेग्लिजिबल ट्रेडिंग ही कर रहा है, डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, कभी कभी कोई टीवी में ट्रेड दिख जाए वो ले लिया, किसी ने टिप दे दी तो वो ले लिया, बट अभी सिस्टमैटिक वे में एक प्लान के थ्रू नहीं कर रहा है। और आज उसने स्टार्ट किया ये वीडियो देखने के बाद कि मुझे एक प्लान बनाना है। तो वो प्लान कैसे बनाए, क्या क्या पॉइंट्स, पैरामीटर्स कंसिडर करे और प्लान क्या हो। 5 से 6 लाख रुपए का माल आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में। आगे बढ़ना है तो फास्ट चलना होगा, लेकिन दूर तक चलना है तो सबके साथ चलना होगा। Hey everyone, welcome to another podcast episode of the LearnCast series that we are doing at TradeWise. Today we have a very special guest with us, and he's one of the most popular teachers, experts on our platform, and he has almost 1,000 to 2,000 students that he has trained over the last 4 to 5 months, manages a large capital to the tune of 20 to 25 CR, and has been extremely profitable and has been delivering a great alpha over Nifty returns. We have with us Mr. Harish Shanivare. Welcome, sir. Thank you. And we are very grateful that you are here for sharing all the knowledge, all the wisdom with us today. Thank you, sir. Let's get started. I think when I invited you, the discussion that we had before the podcast was that how do we actually get all the retail traders, investors in India to a level where at least they don't make any losses. Right, sir. And they continue making a regular income, a regular returns with their whatever minimum trading capital that they are getting started with. Yes. And the retail traders, investors in India, the Janta is very confused because they don't know which asset class to go into. Right. They don't know what kind of trading style to choose. Right. Intraday करना है, swing करना है, crypto में जाना है, stocks में करना है, and जितने भी experts होते हैं YouTube पे, Telegram पे, ज्यादातर कंफ्यूज ही करते हैं। Exactly. और हर कोई जिस एसेट क्लास में खुद एक्सपर्टीज लेके बैठा होता है वो वही गाइड करता है कि आप भी इसमें कर लीजिए। Exactly. आपसे मिलके समझ के मुझे समझ आया कि नहीं, वी कैन क्रिएट स्ट्रेटजीज व्हिच कैन वर्क अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस एंड अक्रॉस डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स आल्सो, राइट? सो that is what we were very interested in showcasing it to our viewers, and maybe we'll go deeper into that strategy as well. But let's start off first with maybe your journey. You hail from Nagpur, right? Right, sir. Thanks for been inviting me here, and let me, आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है हमको कि काफी सारे लोगों को जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, there are so many confusion and the difficulties to when to start and how to start and कैसे इसको जर्नी को स्टार्ट करें। So मेरा भी जर्नी इस confusion से ही स्टार्ट हुआ था। 2003 I've been graduated as a commerce, and I don't have any kind of financial background. So my father was in just an LIC agent. So घर में ना पैसा था हमारे, ना ही ऐसा कोई बैकग्राउंड था कि हम लोग कोई बिजनेस कर पाए। So that was been thinking कि 6 महीने तब करे क्या। So it was been वो जो समय था वो तो 6 महीने तो मेरे को ये सोचने में समझने में लग गया कि अब यहाँ से करूँ क्या ना। मेरे पास which year? I did in 2003. So it's almost been 22 years. Yeah, so you've been active in the market since 20 years. आप बोल सकते हो। तो वो जो 6 महीना समय गया मेरा, उसमें हमको ये समझ में आ गया था कि we don't have any kind of talent और we don't have any kind of money. तो हमारा कुछ हो नहीं सकता। तो 6 महीने समझने के बाद जब घर में पॉकेट मनी के पैसे मांगने में शर्म आने लग गई, देन वी थॉट कि यार कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। एंड बाय वन ऑफ द मारवाड़ी फ्रेंड, आई बीन डेफिनेटली आस्किंग कि मारवाड़ी था वो बंदा और उसको पैसे की भाषा समझ में आती थी।
सो ही आस्क्ड कि यार देख, स्टॉक मार्केट का नाम बहुत सुना है अपन ने, और सुना है वहां पे बहुत लोगों की किस्मत बन जाता है, सो लेट्स ट्राई समथिंग इन स्टॉक मार्केट, शायद अपनी भी किस्मत बन जाए। सो आइडिया वाज क्लिक कि सबसे पहला क्वेश्चन यही आया कि यार स्टॉक मार्केट में तो इट्स बिन द बिग पीपल्स गेम, हाउ द रिटेलर्स तो छोड़ो, अपने जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है, हाउ कैन वी मूव ओवर देयर। सो वो बड़ा डिफिकल्ट था कि डिसीजन लेना कि स्टॉक मार्केट में जाना विदाउट एनी काइंड ऑफ टैलेंट और विदाउट काइंड ऑफ मनी। सो स्टिल वी टेकिंग कि चल समझते तो है, लेट्स स्टार्ट समथिंग, एंड वी विजिटेड वन ब्रोकर्स ऑफिस। वहाँ पे ब्रोकर ऑफिस के पास गए हम लोग, उनकी पहचान के ब्रोकर थे वो, एंड वी स्टार्टेड इंफॉर्मेशन गैदरिंग की क्या कैसे काम होता है। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें समझाई कि स्टॉक ब्रोकिंग होता है, शेयर्स की लेन देन होती है, यू कैन ऑनलाइन यू कैन डू द बाइंग एंड सेलिंग। सो वहाँ पे एक आइडिया और क्लिक हो गया हमारे माइंड में, यार अपने पास पैसे तो नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेट्स यूटिलाइज देयर मनी इनटू द मार्केट, उसको पैसा लगा के उसमें से पैसा बनाते हैं और अपने लिए भी कुछ पैसा बनाते हैं। सो आइडिया वाज गुड कि अपने पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, लोगों के पास बहुत पैसा है। सो वो आइडिया हमारा जनरेट हुआ था इन 2005-06, एंड 2005-06 में यानी 2 साल तो हमको वो समझने में लग गए कि ये आइडिया जनरेट करने के लिए 2 साल लग गए मुझे, कि 2003 में मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है, मैं 2006 में मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ। You didn't do any job in between? किया था सर, आई बीन ट्राइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेकिन उसमें भी आई बीन फेल्ड एज यूजुअल, कि ना कोई टैलेंट था, एंड प्राउडली आई कैन से कि मेरे को 50% से कम मार्क थे मेरे ग्रेजुएशंस में। दैट इज वाई मार्कशीट की इज नॉट शोइंग दैट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टैलेंट, बट व्हाट आई बीन गिवन यू कि आपके अंदर टैलेंट आपके समय के साथ आता है। Correct. When you start mastering anything, the talent it automatically increase। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आप कुछ कर नहीं सकते या आपके लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते। इट डजंट मीन कि आपका समय आपका साथ नहीं दे रहा है या बहुत सारी चीजें होती है उसमें, बट व्हेन आई बी स्टार्ट मास्टरिंग दिस सेल्फ, तो आज वही नॉन टैलेंटेड बंदा आज 25 करोड़ खर्च कर रहा है, एंड इट्स मेकिंग द थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हैव बीन एजुकेटेड इन द स्टॉक मार्केट। सो इट बिन द आपके अंदर कितना वैल्यू, आप उसको कितना, आपके खुद के अंदर कितना टैलेंट है और आप उसको कैसा यूटिलाइजेशन करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट नॉट कि आप बर्न नहीं होते टैलेंट के। सो व्हेन दैट जर्नी बीन स्टार्टेड, और वहां से हम लोगों का जर्नी स्टॉक मार्केट में शुरू हुआ। फ्रॉम दैट लेवल बहुत सारे अप एंड डाउन्स हुए हैं। 2008 वाज द ग्रेट लेमन ब्रदर क्रैश, जहाँ पे हमको बहुत सारी डिफिकल्टीज आई थी। वो लाइफ की डिफिकल्टीज इतनी हमको डीप लेके चले गई कि हमको सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि हाउ यू कैन डू द स्टॉक मार्केट। ये जो टैलेंट बर्न हुआ है उस प्रॉब्लम से हुआ है। सो मैं मेरे व्यूअर्स को यही बोलूंगा कि अगर स्टॉक मार्केट में आप स्ट्रगल कर रहे हो, यू हैव बीन डूइंग स्ट्रगल इन द स्टॉक मार्केट, इट मींस यू आर गेटिंग सम टैलेंट। आपके अंदर वो टैलेंट आ गया। अगर आपने इसको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरफ देखा तो जिंदगी भर प्रॉब्लम की तरह ही देखोगे। इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग द सोल्यूशन, आपकी सक्सेस बहुत जल्दी आपके लाइफ में आ जाएगी। सो व्हाट इज इन डिपेंड ऑन अस कि हम प्रॉब्लम में सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं या प्रॉब्लम फाइंड कर रहे हैं। सो इफ यू स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्रॉब्लम, आपको हर जगह प्रॉब्लम ही दिखने लगेगा। एंड व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू कैन फाइंड द सोल्यूशन, तो आपको एक प्रॉब्लम के 1000 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो व्हाट आई बीन लर्न फ्रॉम द लाइफ, तो उसने मुझे यहाँ तक पहुंचा दी कि मैं कभी प्रॉब्लम, स्टॉक मार्केट तो मेरे लिए कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। इट्स बिन माय लव, कि वहां से मेरा जो इट्स बिन लाइक मेरा पैशन बन चुका है ये। एंड माई पैशन इज, मेरा जो ब्रेड एंड बटर चलता है ये ट्रेडिंग से चलता है, बट माई पैशन इज टू ट्रेन द ट्रेडर। बिकॉज जब 2008 में लेमन ब्रदर क्रैश हुआ था तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी थी कि हमको अपने ऑफिसेस बंद करने पड़े। एक सिचुएशन ऐसा बन गया था कि मेरी बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाना और मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसा नहीं है। सो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो आई बीन डिसाइडेड माई सेल्फ कि ये दिन दोबारा आपके लाइफ में नहीं आना चाहिए। एंड आई बीन सीन दैट कि ये प्रॉब्लम मेरे नहीं, ये हर ट्रेडर के लाइफ में एक ना एक बार आता है कि वो इतना डाउनफॉल देख लेता है कि उसको लगता है कि अब लाइफ खत्म हो चुका है और यहाँ से हमारा कुछ नहीं हो सकता। दैट डे इफ यू डिसाइड अ सॉल्यूशन, यू विल गेट अ सक्सेस। तो उस दिन आपके पास वो चीज होती है जो पूरे जिंदगी में आप जहाँ डाउन ट्रेंड में चल रहे हो, तो एक ऐसा आपके पास एक हथियार बन जाएगा कि वो आपको अप ट्रेंड में लेके चले जाएगा मार्केट में। दैट व्हाट यू बीन लर्न इन द लाइफ, कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरफ मत देखो, उसको सॉल्यूशन ढूंढो, वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। एग्जैक्टली। वेरी गुड। सो दैट इज आई थिंक वेरी इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स जो सोचते हैं कि कैपिटल कम है
मेरे को इतनी समझ नहीं है, मैं फाइनेंस पढ़ा नहीं हुआ हूँ, तो मैं कैसे करूँ? Yes. Here is a living example. You are the living example here. हाँ. और आपने 2005 से अभी तक किसी और इंडस्ट्री, कोई और जॉब करके, बिजनेस करके पैसा नहीं बनाया है. आपकी सारी की सारी फैमिली इनकम इसी के थ्रू आई है. मेरा इन्वेस्टमेंट्स जो मेरा पोर्टफोलियोज मैनेजमेंट का काम है, बिकॉज क्या होता है सर, ये मेरा ब्रेड एंड बटर बन चुका है एंड ट्रेन द ट्रेनर ये मेरा पैशन बन चुका है. सो मेरा मेनली इनकम इज द स्टॉक मार्केट. करेक्ट. उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस है अभी. एंड व्हाट आई बीन फील कि जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसे कम है, या कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसे तो हम लोग मार्केट से बहुत पैसा कमा लेंगे. इट्स नॉट बीन लाइक ऑन दैट लेवल. आपको पैसे की अगर भाषा समझनी है तो ये समझना पड़ेगा कि आपके पास कितना पैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाउ यू यूटिलाइज योर फंड इफेक्टिवली इन द मार्केट, दैट मैटर. करेक्ट. आपके पास कितना पैसा, आपके पास 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, इट डजंट मैटर इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज इट. और एक बंदा हम लोग देखते हैं कि जो 50,000 लेके आता है, 25,000 लेके आता है और वो 25 लाख तो ग्रो कर जाता है. कर लेते हैं. एक बंदा 5 करोड़ लेके आता है, वो अपना अकाउंट ड्रॉप डाउन कर देता है 20 और 25 लाख पे. सो दैट इज द मार्केट इज बीन वेरी डाइवर्सिफाइड है. इट्स हम लोग बोलते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे रिस्किएस्ट बिजनेस है. एंड यू आर फाइटिंग विद द मोस्ट ट्रेन आर्मी प्लेयर्स के साथ आप बैटल कर रहे हो. तो आपको आपका लेवल का वैल्यूएशन कितना बढ़ाना पड़ेगा. करेक्ट. आप पहले ही रिस्क वाले बिजनेस में काम कर रहे हो और आप उनसे फाइट कर रहे हो जो ऑलरेडी इस फील्ड के चैंपियंस है. तो अपने आप को किस तरह से वैल्यू करे, अपने आप को किस तरह से ग्रो करे. अगर आप इस हिसाब में नहीं सोचते हो कि मैं बैटल किससे कर रहा हूँ, समझ लीजिए हम लोग बहुत सारे जो बंदे होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, लेके आ जाते हैं 20-25 हजार रुपए एंड दे थिंक दैट कि आई कैन मेक द, मैं 25,000 को 25 लाख बना दूंगा. That the every trader's dream. That is the dream. तो प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस होता है मार्केट का, बड़ा प्लेयर सोचता है कि they have a 25 lakhs and they want consistently 25,000 every day. और हम सोचते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर कि मेरे पास 25,000 है, I'll make this to the 25,000 to the 25 lakhs. If you're enjoying the content till now and also finding the learning shared by Harish sir valuable, and you would want to learn the framework of Harish sir in detail, you can also register for the live masterclass with Harish sir hosted by TradeWise, the Future University. The link for the masterclass is shared in the description. Register now. तो ये थॉट प्रोसेस जो माइंडसेट होता है ना, ये बहुत सारा बड़ा रोल प्ले करता है टू बिकम द गुड ट्रेडर. जितना छोटा कैपिटल होता है उतना बेटिंग बिहेवियर आ जाता है लोगों में. बेटिंग बिहेवियर, हाँ, बेटिंग बिहेवियर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. आज फील दैट की लॉटरी की टिकट खरीदता हूँ मैं, 50,000 रुपए का एक लॉट खरीदा है, 50,000 का एक लॉट खरीदा है. यस. तो मैं लॉटरी की टिकट खरीद ली है, तो लॉटरी लग गई तो मेरा 50 लाख बन जाएगा. Whereas institutional investors, large players don't think like that. Right, they think systematically. Systematic and management and the discipline. So मैं मेरे हर पार्टिसिपेंट को बोलता हूँ कि ट्रेडिंग इज, आप अगर सोच रहे हो कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ स्ट्रेटेजीज, trading is a game of risk management, or trading is the game of buying and selling. It's not been all. ये इतना ही नहीं है. What I feel, a trading is a game of everything. तो everything means every concept is been involved in one trade. Yeah. आपका उसमें selection of stock भी आ गया. That is also trading. You have been finding the risk management also trading. आपका timing of entry is also trading. Correct. आपका exit point is also trading. And finding the stock with the management of your mindset कि आप कितने देर उसको hold कर सकते हो. आपका अगर trade लेने के बाद आपका अगर BP बढ़ जाता है, so it means you have been something doing wrong. एक patience trader या cool mind का trader कभी भी अपने ट्रेड लेने के बाद उसको घबराहट महसूस होगी ही नहीं, क्योंकि उसने एवरीथिंग मैनेज कर लिया. सो पीपल्स आर मास्टरिंग ओनली वन थिंग समटाइम, कि एक कोई चीज मास्टरी कर ली कि मैं एंट्री प्रॉपर कर लूंगा, मैं एक इंडिकेटर मास्टर कर लूंगा. सो दे आर मास्टरिंग द वन थिंग, बट ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ वन थिंग, इट्स अ गेम ऑफ एवरीथिंग. सो व्हेन वी, ये ऐसा है सर, इट इज ट्रेडिंग लाइक अ पजल. आपके पास 10 चीजें हैं एंड यू हैव टू सॉल्व द पिक्चर होता है पजल के ऊपर, उसको बनाना है. सो यू आर कनेक्टिंग 1, 2, 3, 4, 5, व्हेन दे आर बीन कलेक्टिंगली, तो आपका एक पिक्चर रेडी होगा. तो जैसे जैसे आप पजल को सॉल्व करते चले जाओगे, ट्रेडिंग आपको क्लियरिटी करता चला जाएगा. एंड दैट मेक द सक्सेसफुल
as a Correct. trader in the market. Agreed. No, very interesting journey. I think, matlab, we all have a lot to learn from you because you have seen different phases in Yes, the sir. Indian stock market also. जैसे कि मैं स्टॉक मार्केट में 2017-18 में एक्टिव हुआ था, Right. तो मैंने थोड़ा बहुत प्री कोविड इरा देखा है, एंड देन मोस्टली आई हैव विटनेस्ड आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड इरा, which is a great bull run that has been there since Right. 2020. Right. And most retail traders in India today who have entered the market have actually entered in the last 5 years, Yes. post-COVID. Exactly. So they've only seen one era, one phase One of stock phase. market. Whereas you have seen multiple phases. Right, sir. So I would want to know maybe your insights, maybe pre-2008, what did the market look like? किस तरह का लोगों का behavior होता था? कैसे trading करते थे आप? देखिए, bull market and the bear market are the two phases. हाँ. But what I feel कि right exit is the right phase. आप मार्केट में एंटर तो कर लेते हो, इट्स लाइक अभिमन्यु जो चक्रव्यूह होता है, देयर इज मार्केट लाइक अ चक्रव्यूह, तो आप एंटर कर लोगे, लेकिन आप सही टाइम से अगर मार्केट पे नहीं निकल पाओगे तो आपका मृत्यु निश्चित है. सो व्हाट आई फील कि मार्केट दोनों तरफ मार्केट पैसा कमाने का देता है, एंड इट बीन वेरी इजी टू फाइंड कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट में कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है. इफ यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट द साइकोलॉजी एंड द सेंटिमेंट ऑन द सिनेरियो, प्राइस आपको खुद ही बता देता है कि व्हेन इट वांट टू बी बिट सिट इन द मार्केट और गेट एग्जिट इन द मार्केट. बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग आगे जैसे डिस्कस करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी बताऊंगा आपको कि हाउ वी कैन फाइंड कि कौन सा राइट एरा है. और मार्केट हैज बीन डायनामिक सर. आप मार्केट में आज हम लोग अगर बात करें तो मेरे पास इंट्राडे वाले जो बच्चे हैं, जो दे बीन जस्ट सीन द हाफ एन आवर और 1 आवर कैंडल, वो भी पैसा बनाते हैं. शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाले भी पैसे बनाते हैं. लॉन्ग टर्म ट्रेडर वाले जो लॉन्ग टर्म जिनका पोजिशनल व्यू होता है वो भी पैसा बनाते हैं. एंड द इन्वेस्टर्स दे आर आल्सो मेकिंग. सो एवरी ट्रेडर हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट. उनका हर चीज का अलग होता है. हम लोग क्या करते हैं एज अ जब हम लोग नए बिगिनर्स होते हैं, हमको हमारा स्टाइल ही नहीं पता होता. एवरी ट्रेडर हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन इट. उसको उसका स्टाइल नहीं पता होता कि मुझे करना क्या चाहिए, उसको करना सब है. सो दैट इज द मेन कंफ्यूजन कि पता नहीं है करना क्या है, लेकिन करना सब कुछ है. करेक्ट. सो ये वजह से प्रॉब्लम होता है उनके कि दे आर नॉट एबल टू फाइंड व्हाट इज द राइट थिंग दे वांट टू डू इन देयर लाइफ. अब कुछ बंदे आते हैं मेरे पास, दे आर ऑलरेडी डूइंग द जॉब्स. उनको जॉब भी करना है. सर हमारे पास टाइम होता है थोड़ा बहुत, तो हम लोग ट्रेड कर लेते हैं. कुछ एक बिजनेस वाले आते हैं, सर हमारे पास बीच बीच में कैपिटल है और हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है. So that they are doing the standing in the two boats. Yeah. And one person standing in two boats. उसको business भी करना है, उसको trading भी करना है. Correct. Right? So when we are standing with in the different kind of boat, उसका डूबना तय है. This become the Titanic. Right? So मैं बोलता हूँ उनको कि आप किसी एक चीज पे concentrate कर लो. अगर आप business पे concentrate करते, there is a different kind of scenario कि आप swing trading में चले जाओ, आप positional trading में चले जाओ. Intraday आपके लिए नहीं है, but interest उनको इंट्राडे में करना है. Right. So the people not understanding even the price और उनको इंट्राडे, that is the world riskiest जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, that is इंट्राडे. Correct. तो उसके पास ना टाइम है, ना उसके पास उतना नॉलेज है, ना उतना टैलेंट है कि उस चीज को समझ जाए, लेकिन करना उसको इंट्राडे है. अब इंट्राडे में नॉर्मली होता है कि वो स्टॉक बाय कर लेता है, उसके बाद सोचता है कि अब आज बढ़ा नहीं, वी कैन सेल इट टुमारो. सो द इंट्राडे प्लेयर साइमल्टेनियसली बिकम द शॉर्ट टर्म ट्रेडर. करेक्ट. शॉर्ट टर्म ट्रेडर में कभी कभी होता है कि वो स्टॉक उसका वहां से भी ऊपर नहीं आ रहा है, फिर वो 7 दिन के लिए होल्ड कर लेता है. चलो 7 दिन देख लेते हैं, कुछ ऊपर आया तो वी कैन मैनेज और वी कैन गेट एग्जिट के. लॉस में तो नहीं बेचूंगा. तो वो उसके पास पैसा है, बिजनेस वाले के पास पैसा है, जॉब पीपल के पास पैसा है, दे कैन होल्ड. अब वो स्टॉक फिर भी ऊपर नहीं आ रहा है, फिर वो चले गया 1 महीने तक नीचे. सो बिकम द शॉर्ट टर्म टू द लॉन्ग टर्म ट्रेडर. तो ऐसा फेज उसका ऑटोमेटेड चेंज होता है जब वो डिसिप्लिन में नहीं रहता. उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ द टाइम फ्रेम्स और व्हाट काइंड ऑफ राइट चॉइस टू हुई बॉर्ड. अब आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है, आपको पोजिशनल बनना है, आपको स्विंग बनना है, आपको इन्वेस्टर बनना है, योर स्कैल्पर. तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आपको बनना क्या है. व्हाट इज द टाइम यू हैव, आपके पास टाइम क्या है, और उसके हिसाब से आपका फिर सुटेबल होगा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. तो यू हैव टू बिकम द स्पेशलिस्ट फॉर दैट. तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ट्रेडर किस तरह के हो. सही बात है.
तो ट्रेडर आप नहीं डिसाइड कर पाओगे, आपके जॉब या बिजनेस के अकॉर्डिंगली या फुल टाइम करना है तो यू विल गेट ऑलवेज कंफ्यूज, तो आप हर चीज करोगे और हर चीज गलत करते जाओगे। दैट लाइक अ फर्स्ट स्टेप। सही बात है। आपका फर्स्ट स्टेप भी अगर गलत हो गया तो आगे के आने वाले हर स्टेप आपके गलत ही होते चले जाएंगे। यू आर नॉट एबल टू, वो आप बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। तो पहला स्टेप गलत होगा, उसके बाद का गलत होगा, उसके बाद का, मैं भी थिंकिंग कि मार्केट गलत कर रहा है। मार्केट कभी गलत नहीं करता, मार्केट इज लाइक अ गॉड। करेक्ट, सही है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दिस इज अ गुड सेगवे इनटू having a conversation which is more technical and finance related. Right. मान लीजिए अगर किसी ने अभी आज स्टार्ट किया ट्रेडिंग, जी, ठीक है, या फिर वो कुछ महीनों से कर रहा है बट मतलब वो नेग्लिजिबल ट्रेडिंग ही कर रहा है, डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, कभी कभी कोई टीवी में ट्रेड दिख जाए वो ले लिया, किसी ने टिप दे दी तो वो ले लिया, बट अभी सिस्टमैटिक वे में एक प्लान के थ्रू नहीं कर रहा है। राइट। और आज उसने स्टार्ट किया ये वीडियो देखने के बाद कि मुझे एक प्लान बनाना है। राइट। हरीश सर बोल रहे हैं, तो वो प्लान कैसे बनाए, क्या क्या पॉइंट्स पैरामीटर्स कंसिडर करे और प्लान क्या हो, और कुछ पैसा इस कैपिटल में हर महीने ऐड हो जाता है जो भी उनकी बिजनेस इनकम आती है या जॉब इनकम आती है। राइट। उनको क्या करना चाहिए? रिस्क एपेटाइट उनका, दे डोंट वांट टू रिस्क देयर एंटायर कैपिटल बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई हैव अ वर्ड विद अ लॉट ऑफ आवर यूजर्स आल्सो, जब वो बोलते हैं कि मेरे पास कैपिटल इतना है, 20 लाख है, 10 लाख है, वो अपना सारा कैपिटल बता देते हैं। वो ट्रेडिंग कैपिटल नहीं बताते हैं, वो सारा कैपिटल वो बता देते हैं जो उनके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो कि उनकी सेविंग भी है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी है, लिक्विड फंड भी है, तो वो सब कुछ कैपिटल बता देते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि चलो 1 से 10 लाख रुपए वो ट्रेडिंग के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, बट दे डोंट वांट टू वाइप इट अवे। वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो 1 लाख जीरो बन जाए या 10 लाख जीरो बन जाए। तो कम रिस्क के साथ, कम टाइम के साथ 1 लाख से 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली सर। अब इसमें कैटेगरीज हो जाती है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ माइंडसेट, डिफरेंट टाइप ऑफ आपका टाइम एंड द कैपिटल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने बोला कि देयर आर, अब हम लोग इसको कैटेगराइज करें कि टाइम वाइज अगर हम लोग इसको करते हैं तो आपके पास अगर टाइम नहीं है सो यू आर बीन एज अ इन्वेस्टर, आप उस चीज को देख नहीं सकते बार बार। करेक्ट। राइट। तो आपको एक तो इन्वेस्टमेंट्स फॉर द लॉन्ग टर्म जाना चाहिए, आपके पास कैपिटल है और आपके पास मार्केट देखने का टाइम नहीं, बाकी अदर आपके पास टाइम है जो कैपिटल आपका एडिशन होते जाएगा। सो यू विल एज नॉट एज एनी काइंड ऑफ ट्रेडर, यू विल हैव टू बिकम द इन्वेस्टर। आप स्टॉक मार्केट के ब्लू चिप्स या अच्छी कंपनीज में जो अंडर वैल्यूएशन पे चल रहे हैं ऐसे कंपनीज में जा सकते हैं जहां पे आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा मार्केट में, और यू कैन डायरेक्टली फंड द म्यूचुअल फंड जो नॉर्मल जॉब प्लेयर्स कर रहे हैं। इफ यू हैव अ टाइम and if you want to learn in the market, आपके लिए चारों ऑप्शन खुल जाते हैं। You can become the intraday traders, you can become the positional traders, you can become the swing traders, you can become the scalpers। अब नॉर्मली इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है कि जहां पे एक बंदा जॉब भी कर रहा है, थोड़ा बहुत उसके पास टाइम भी है, थोड़ा बहुत कैपिटल भी है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में आ जाइए, जहां पे आप इंट्राडे नहीं करेंगे, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप ऐसा कुछ क्वांटिटी आप काम करेंगे जहां पे आप 15 से 20 दिन तक स्टॉक को होल्ड कर पाए। करेक्ट। दैट इज अ शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग। सो बंदे को करना क्या है कि मार्केट जब क्लोजिंग हो जाता है, क्लोजिंग के बाद वो 15-20 मिनट देगा, अपना स्टॉक सिलेक्शन करेगा। वो सिलेक्शन प्रोसेस भी हम लोगों ने आपको बहुत ईजी करवा दिया है, स्कैनर्स दे दिए। सो विल गेट, उसको दिन भर देखना ही नहीं है मार्केट, उसको सिर्फ जाके देखना मार्केट क्लोज होता है, जब वो घर पहुंचे खाना अपना लंच वंच कर ले, आपका अपना डिनर कर ले, देन एट द नाइट सोने के पहले देख लेगी स्कैनिंग में क्या स्टॉक्स आया हुए हैं। सो यू कैन फाइंड द स्टॉक, आपको सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स मिल जाता है। राइट। उसके ऊपर आपको सिर्फ आपके ऑर्डर्स डाल के छोड़ देना है, डाल देना है। दैट मीन द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। उसको दोबारा देखना नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट है 15 से 20 दिन के लिए। करेक्ट। तो जब तक आपका एक तो स्टॉप लॉस नहीं जाता या आपका टारगेट नहीं आता, नॉट टू डू वरी। तो अगर आप शाम के 15-20 मिनट, आधा घंटा दे सकते हैं स्कैनिंग, पिकिंग ऑफ स्टॉक्स एंड देन मे बी जस्ट प्लेसिंग ऑर्डर्स, उतने में काम चल जाएगा। काम चल जा सकता है, लेकिन लोगों को थ्रिल चाहिए। उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग चाहिए। सो वो एंटरटेनमेंट के लिए वो अपना लॉस अननेसेसरी, अपना जो एक्चुअल उनको राइट चीजें जो करनी चाहिए, दे आर बीन पुटिंग इन द रॉन्ग वे। राइट थिंग दे आर पुटिंग इन द रॉन्ग वे। सो वो इंट्राडे भी करने लग जाता है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाता है। अरे भाई, आपके पास टाइम है नहीं, आप ध्यान नहीं दे सकते हो, यू आर नॉट गेटिंग ट्रेन टू मेक द ऑप्शन ट्रेडिंग को हम लोग बोलते हैं इट्स अ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन ऑफ द मार्केट। डिस्ट्रक्टिव वेपन ऑफ द मार्केट है जो आपका पूरा एंटायर कैपिटल जीरो कर सकता है। इवन यू कैन मेक मोर डेप्थ ऑन यू।
तो वो ऐसा सुदर्शन चक्र मार्केट ने आपको बना के दिया है, इसका अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये आपका ही गला काट देगा। वो आपके पास सुदर्शन चक्र दिया है, इसका पहले इस्तेमाल करना सीखो तो ये आपके काम का है। राइट। तो दैट इज द व्हाट आई फील कि लोगों को लगता है कि सुदर्शन चक्र मिल गया, मैं आई विल बी बिकम द कृष्ण ऑफ द मार्केट एंड डू एवरीथिंग। तो पहले उसका चक्रों को धारण करने के लिए भाई बहुत सारे तप करने पड़ेंगे। यू हैव टू इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑफ यू कैन कनेक्ट विद द गॉड, तब जाके आप उस चक्र को चलाने के लिए भगवान आपको मे बी कैन ब्लेस यू टू मेक द सुदर्शन चक्र रन फॉर योरसेल्फ। करेक्ट। सो उसके लिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, आपको उतना टैलेंटेड बनना पड़ेगा कि आप उस शक्ति को संभाल सको। इट्स बीन लाइक एक शक्ति है जो आपको 0 से लेके करोड़ तक बना सकती है या आपको करोड़ से 0 पे ला सकती है। एंड देयर इज लॉट ऑफ स्पेस टू मेक मिस्टेक्स इन द मार्केट, राइट। एंड मार्केट इज द प्लेस जहां पे आपकी कोई भी गलती की कभी माफी नहीं मिलेगी। करेक्ट। वंस यू मेक द मिस्टेक यू हैव टू बी रेडी फॉर द पनिशमेंट्स। मार्केट की जो मार पड़ती है उसकी आवाज नहीं होती सर, वो सीधा रिफ्लेक्शन दिखता है आपके चेहरे पे और आपके बैंक अकाउंट पे। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कैन एक्सपीरियंस दैट। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। सो यहाँ पे गलती की कोई माफी नहीं मिलेगी आपको। अंडरस्टूड। तो ठीक है। सो पहले किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है जी, ठीक है। आर देयर अदर पैरामीटर्स इन द ट्रेडिंग प्लान आल्सो? कोई और चीजें भी होती हैं ट्रेडिंग प्लान के अंदर कि सिर्फ मुझे यही चूज करना है कि इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, स्कैल्पिंग करना है? आप पहले आपका टाइम देख लीजिए, आपके पास फंड्स कितना है, एंड दैट अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान कि आपको किस तरह का ट्रेडिंग स्ट्रक्चर सूट करता है, व्हाट इज बीन सूटेबल फॉर यू। इंट्राडे करना हम लोग स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं फॉर द पीपल्स हु आर डूइंग द जॉब्स एंड द पीपल्स हु आर इन द बिजनेस। ठीक है। इवन बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर हम लोग का अभी ग्रेजुएशन हो गया, स्टूडेंट्स आते हैं। इवन आई बीन मेरे कुछ डॉक्टर्स क्लाइंट्स हैं, सो उन्होंने अपने 6वीं 6th 7th क्लास में उनके बच्चे हैं, देन वांट टू ट्रेन इन द स्टॉक ट्रेडिंग। तो वो मैंने 7वीं क्लास के बच्चों को भी ट्रेन किया है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए। सो आप समझिए ये जेन जी जो बच्चे हैं ये बहुत ओवरली टैलेंटेड है। तो दे वॉन्ट बी इन वेरी यानी अभी से आप समझ सकते हैं कि 7th क्लास के बच्चे को अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो किस लेवल पे जाने वाला है आगे। राइट। हमने आपकी जर्नी समझ ली है और आपने एक बहुत अच्छा लेआउट करके दे दिया है कि प्लान क्या होना चाहिए। राइट। अगर बेसिक 2-3 रूल्स आपको बताने हो फॉर समवन हु स्टार्टिंग देयर ट्रेडिंग जर्नी नाउ, इट्स एंड ऑफ 2025 2026 स्टार्ट होने वाला है। राइट। लोग जो डिसाइड करके बैठे हैं कि या तो मैं अभी लॉस में था, मैं 2026 प्रॉफिट में करूंगा, राइट, अच्छे से ट्रेडिंग करता हूँ सिस्टमैटिक वे में, या फिर कोई डिसाइड करके बैठा है कि मुझे स्टार्ट करना है स्टॉक मार्केट में, राइट, उसको क्या 2-3-4 रूल्स फॉलो करने चाहिए वेरी क्लियर कट? बेसिकली मार्केट में जब स्टॉक मार्केट की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले तो किसी भी इन्वेस्टर और किसी भी ट्रेडर को हम लोग ये बोलते हैं कि सबसे पहले आपके माइंड में डिसाइड करो कि देयर इज नो लॉस दिस ईयर। तो जब आपका माइंडसेट एज अ ट्रेडर बनना चालू होगा, ट्रेडर बनने के पहले ट्रेडर के माइंडसेट को समझना जरूरी होता है। सो व्हाट आई बीन डिसाइडिंग फॉर द एवरी ट्रेडर, उसमें 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि देयर आर व्हाट वी आर 5 R's। ओके। कि आपका राइट सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होना चाहिए, राइट सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, राइट कैपिटल एलोकेशन होना चाहिए, राइट कैपिटल एलोकेशन, राइट रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ओके। रिस्क मैनेजमेंट के बाद राइट स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और उसका एग्जीक्यूशन प्लान, एग्जिट जो पॉइंट है वो आपके पास होने चाहिए, राइट एग्जीक्यूशन, राइट। सो इसमें क्या हो जाएगा कि ट्रेडर आता है, उसको लगता है कि मार्केट इज बीन वेरी इजी, जस्ट बाई सेलिंग ही तो करना है। व्हाट इज मार्केट? मार्केट में कुछ भी बाय कर लो, कुछ भी सेल कर लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कुछ नहीं प्रॉफिट हो जाएगा। सो दे डोंट हैव इवन माइंडसेट ऑफ अ ट्रेडर। ट्रेडर का माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपके पास, हम लोग नॉर्मली ये बोलते हैं कि ट्रेडर बनने के पहले आपको ट्रेडर के माइंडसेट को कैप्चर करना पड़ेगा। ट्रेडर माइंडसेट इज कम से कम समय में, कम से कम पैसे में, कम से कम रिस्क में जो बड़ा प्रॉफिट निकाल के दिखा सके, उसको हम लोग ट्रेडर बोलते हैं। करेक्ट। तो ट्रेडिंग इज डिपेंड ऑन 3 पिलर्स, मिनिमम रिस्क, लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड टाइम। तो ये 3 चीजों पे फोकस करके आपको एक ट्रेडर का माइंडसेट पता चल जाएगा। इन तीनों में से कोई एक पिलर भी आपके इसमें मिसिंग है, so you are not doing trading, you are doing something else in the market. Okay.
अब उसको बहुत सारे नाम हैं, लोग इसको गैम्बलिंग बोलते हैं, सट्टा बोलते हैं, बिकॉज उनको ये 3 पिलर ही नहीं समझ में आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में मैंने कुछ चीज ले ली अपने अकाउंट में, मैंने ये बाय कर लिया, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। सो दे आर फॉरगेटिंग द मैनेजमेंट रूल। मैनेजमेंट रूल के साथ वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते। डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते तो उनका कभी कॉन्फिडेंस बनता ही नहीं है मार्केट में। सो वन पजल गेट रॉन्ग तो आपका वो पिक्चर कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ट्रेडिंग इज लाइक अ पजल। एक एक स्टेप आपका सही होता चला जाएगा तो आपका जर्नी ब्यूटीफुल होता सारे पीसेस को फिट होना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ एवरीथिंग, इट इज नॉट जस्ट अ गेम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। करेक्ट सर, हमने बहुत अच्छे से प्लान समझ लिया, एक बिगिनर ट्रेडर को क्या करना है वो समझ लिया। अब डीप डाइव करते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी में जो हमने आज डिसाइड किया कि हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक ऐसी स्ट्रैटेजी चूज की है हमने जो हर तरह का ट्रेडर हर एसेट क्लास में यूज कर सकता है, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग कर रहा हो, और वो स्टॉक्स में कर रहा हो या एफएनओ में कर रहा हो या किसी भी एसेट क्लास में कर रहा हो। आप उसके बारे में पूरा समझाइए, स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करना है, क्या उसके फायदे रहेंगे, क्या नुकसान रहेंगे, क्या उसका उसमें कुछ रिस्क है, वो सब कुछ कवर करते हैं डिटेल में। राइट सर, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द मार्केट। मार्केट बात करता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, दैट इज द रियल बेस, राइट। तो इफ यू अंडरस्टैंड द पैटर्न द मार्केट इज क्रिएटिंग, आपको मार्केट का सिनारियो समझ में आने लगेगा। ठीक है, व्हेन यू अंडरस्टैंडिंग द सिनारियो, you are able to take a decisions and your decision should be in the right direction of the market. That is the first step. Most of the trader are fail because they are not able to take a right decision in the right direction of the market. पहला कदम ही गलत कर दिया तो उसके बाद what do you expect the result? सही बात है। तो मार्केट का सेंटीमेंट कैसे समझेंगे? मार्केट का सेंटीमेंट आपको मार्केट के इमोशंस में समझ में आएगा। If I've been making the open on the, आपको मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, there is a pattern over here. This is a nifty chart. This is the plain nifty chart. हाँ। This is a cash nifty chart, जो आप सेंसेक्स ऊपर गया नीचे गया जो देखते हो टीवी में, जो प्राइस आता है वो उसका चार्ट है। बहुत देर बाद मैंने शेर खान टर्मिनल देखा है। ओके ग्रेट, ये हम लोग यूज कर रहे हैं वेरी, ये क्लियर बता देता है कि वन ऑफ द अर्ली ट्रेडर्स, यस, बहुत पुराने हैं हम लोग। इसलिए आप शेर खान अभी भी यूज कर रहे हैं। शेर खान, बट विजिबल द बेस्ट वन। सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर, देयर आर different type of chart patterns. Correct. Different type of shapes. Can you find any candle which are similar to the any previous candle? आपको कोई ऐसा कैंडल दिख रहा है जो पहले वाले कैंडल से एकदम सिमिलर है? एकदम सिमिलर तो नहीं मिलेगा, there will be some changes. If you find that every candle has a different kind of shape and different kind of color. Correct. Green and red तो वो हमको buying और selling दिखा रहा है, but if you find some candles के कुछ के long wicks है, कोई कैंडल का बॉडी बहुत बड़ा है, किसी कैंडल का बॉडी बहुत छोटा है, किसी कैंडल का विक्स बहुत बड़ा है, किसी कैंडल का बॉडी बहुत बड़ा है और विक्स बहुत छोटा सा है। Now if you've been look at the chart, अब आपको ये चार्ट ओपन किया है मैंने, इसके ऊपर कोई भी फिलहाल इंडिकेटर नहीं लिखा है, एंड what we can see here is every जो कैंडलस्टिक बन रहा है, हर एक कैंडलस्टिक का शेप डिफरेंट है एंड डिफरेंट तरह के शेप्स है। नाउ व्हाई दिस इज डिफरेंट शेप? हर कैंडल अलग क्यों है? बिकॉज इट्स लाइक द स्टडी ऑफ अ मार्केट। आप रोज कुछ ना कुछ मार्केट में स्टडी करके जाते हो एंड मार्केट रोज आपका सिलेबस चेंज करता है, मार्केट रोज नया क्वेश्चन पूछता है। दैट व्हाट इट मीन कि आप स्टडी करके जाओगे, मार्केट वो नहीं पूछेगा आपसे कुछ तो भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आएगा। सो दिस इज लाइक अ पजल। वापस एक पजल में आ गए हम लोग कि हमको ये पता करना है कि कल मार्केट क्या करने वाला है, कल मार्केट आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, एंड दिस कैंडलस्टिक गिविंग यू द आंसर्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू रीड दिस। अब हर कैंडल का शेप अलग है। अब ये शेप बनता है मार्केट के डेटा से। मार्केट का डेटा आता है प्राइजेस से। अब ये कैंडल बनता है ऐसे है कि ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, व्हेन वी कंक्लूड ऑल दोस, तो ये एक आपके लिए एक फॉर्मेशन करता है डेटा का। जैसे हम लोग बात कर रहे थे बेस के ऊपर, तो बेस हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस के ऊपर। अब ये प्राइस हमको पता कैसे चलेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल लेवल ऑफ द मार्केट? सो उसको हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में। अब कैंडलस्टिक पैटर्न इज लाइक अ रियल इमेज ऑफ अ मार्केट। जैसे मैंने आपको बोला कि ये आपको एक रियलिस्टिक व्यू दे देगा कि आपको करना कैसे है मार्केट में। बट जैसे कि हम लोगों ने अभी चार्ट देखा, निफ्टी का चार्ट, and there are every candlestick pattern are
having the different kind of shapes. Correct. Right? When there is a different kind of shape, means every day there is a different kind of syllabus, different kind of examinations. So according to this shape, we have to plan our studies. Correct. तो इसकी स्टडी कैसे करते हैं? तो पहले तो समझते हैं कैंडलस्टिक होता क्या है और इसको फॉर्मेशन में कैसे लाया जाता है. सो इफ आई बीन मेकिंग लाइक दिस कि कैंडलस्टिक बनता कैसे है. कैंडलस्टिक इज अ डेटा. डेटा किस चीज का है? ये डेटा है प्राइस का. So with what we have to understand how to read the price and how to read the sentiment behind the market. तो कैंडलस्टिक जो बनता है वो बनता है दो चीजों से. दैट इज वन इज कैंडल एंड वन इज द स्टिक. जब इन दोनों को हम लोग मिक्सचर करते हैं तो बन जाता है कैंडल स्टिक. अब बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं कि सर हमको ये क्या बेसिक नॉलेज दे रहे हो. जब हम लोग उसको बताना चालू करते हैं कि इसके पीछे का वैल्यू कितना है. अगर मैं सिंपली आपको बोलूं कि इफ यू अंडरस्टैंड द साइंस or the scenario behind the market, you can make every trade with a 1 lakh rupees profit. Yes. So इतना बड़ा उसके अंदर का आपको रिजल्ट मिल सकता है if you do it seriously. Let's see कि ये सही में होता है या नहीं होता है. Let's move on the chart. So candlesticks बनता है 4 एलिमेंट से. that is the price के ही पैटर्न से. that is opening price. opening मतलब मार्केट 315 को जब ओपन 915 को जब ओपन होता है that is opening price. 330 क्लोजिंग प्राइस. और इन बिटवीन जब मार्केट ऊपर या नीचे होता है दैट इज द हाइज एंड लोज उसको बोला जाता है. सो कैंडल इज मेड ऑफ ओपन एंड क्लोज एंड द स्टिक इज मेड ऑफ हाइज एंड लोज. राइट. सो इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो हमको कुछ इस तरह का पैटर्न हमको दिखेगा कि दिस विल बी लुकिंग रेड, दिस विल बी लुकिंग लाइक अ ग्रीन. अब लोगों को लगता है कि नीचे जा रहा है मतलब रेड कैंडल है मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ग्रीन मतलब ऊपर है. बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज व्हाट इज द सेंटीमेंट द मार्केट इज टेकिंग. तो लोग सेंटीमेंट नहीं समझते. उनको सिर्फ दिखता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है. सो मार्केट मोरली द गेम ऑफ सेंटीमेंट्स. सेंटीमेंट कैसे है इसके अंदर? जैसे आप लोग अगर ग्रीन कैंडल की बात करें, सो दैट वी कैन सी द ओपनिंग प्राइस इज हियर एंड द क्लोजिंग प्राइस इज लिटिल बिट हायर. यस. नाउ व्हाट सेंटीमेंट इट क्रिएट? फॉर एग्जांपल द स्टॉक ओपन एट 100 एंड इट इज क्लोजिंग एट 110. तो इसका मतलब क्या होगी? सुबह जो चीज 100 रुपए की बिक रही थी मार्केट में, उसी का भाव शाम होते होते 110 हो गया. करेक्ट. तो दैट इज अ सेंटिमेंट कि पीपल्स आर मोर इंटरेस्टेड टू परचेज दैट स्टॉक. मींस देयर इज अ हाई डिमांड. करेक्ट. हाई डिमांड हो रही है और सप्लाई कम हो रहा है, इसीलिए प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं. दैट इज द सेंटिमेंट बिहाइंड दिस. हाँ जी. द सेकंड थिंग वी कैन सी द रेड. ओपनिंग प्राइस ऊपर की तरफ है और क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ चला गया. इट मीन्स द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट इज गेटिंग बेरिश. द पीपल्स आर नॉट इंटरेस्ट टू बाय एट ऑल. इसलिए क्या हो रहा है कि 100 की चीज शाम को 90 रुपए में बिक रही है. ठीक है. द सेंटिमेंट द पीपल्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय. देयर इज अ लेस डिमांड. डिमांड लेस है, सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, इसलिए वो स्टॉक के भाव गिरते चले जा रहे हैं. तो सिंपल सेंटिमेंट कैन गिव यू द राइट डायरेक्शंस. तो पहले तो हमको सेंटिमेंट समझना पड़ेगा. हाउ कैन वी रीड द सेंटिमेंट? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कैंडलस्टिक का सेंटीमेंट कैसे पढ़ते हैं? सो मेक इट द, जैसे मैंने आपके सामने ये एक ग्रीन कैंडल रख दी और एक रेड कैंडल रख दी. कैन यू सी दिस? यस. नाउ अगर मैं सिंपली आपको ग्रीन कैंडल के बारे में पूछूं कि व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस? देयर वर बायर्स इन द मार्केट एंड दे केप्ट बाइंग, द डिमांड केप्ट इंक्रीजिंग. सिंपल आ गया. मतलब आपको ये सिंपली समझ में आ गया. ग्रीन कैंडल में बायर्स है तो आने वाले दिनों में व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन यू हैव टू टेक. आप किस तरह का डिसीजन इसमें लेना पसंद करेंगे? बुलिश रहेगा तो बुलिश रहेगा तो आपका बाय. मींस व्हेन यू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी बिहाइंड द सेंटीमेंट यू आर एबल टू टेक अ डिसीजन. क्योंकि मार्केट में कंफ्यूजन नहीं थी, वन साइडेड ही था मार्केट. अब इसको मैं अगर आपको और डार्क साइकोलॉजी में लेके चले जाऊं, इफ आई बीइंग गिवन द मोर सेंटीमेंट, आपने इसमें ऑब्जर्व किया कि इसमें कोई विक्स नहीं है, कोई हाई पॉइंट नहीं है, कोई लो पॉइंट नहीं है. देयर इज नो हाइज एंड लोज इन दिस. कोई विक्स आपको दिख रहा है उसमें? नहीं दिख रहा. नाउ व्हाट इज मीन बाय सेंटीमेंट? अब इसको अगर मैं देखूं यहाँ पे कि यहाँ पे कोई विक्स नहीं है. अगर यहाँ पे विक्स अगर होता तो हम उसको रीड कैसे करते थे कि मार्केट अगर लो पॉइंट बना था कि मार्केट 915 को ओपन होगा, इट इज ओपन एट 100 एंड मार्केट इज गोइंग टू द 95. तो सेंटीमेंट क्या होता है कि मार्केट ओपन हुआ 915 को, उसके बाद मार्केट में कुछ सेलर आए जिन्होंने प्राइस को ड्रॉप डाउन किया. करेक्ट. बट इन दिस केस देयर इज नो विक. इसका मतलब मार्केट जैसे खुला कोई सेलिंग करने के लिए रेडी है क्या? इज देयर एनी पर्सन हु ट्राई टू सेल द स्टॉक? नहीं. बट इंस्टेड अभी नेट पे इंटरनेट पे यही चीज चर्चा होती है कि हमको तो सर ये समझता है कि यहाँ पे हमको कोई सेलर नहीं दिख रहा. बट व्हाट इज द डार्क साइकोलॉजी बिहाइंड दिस सेंटीमेंट इज व्हेन द मार्केट ओपन एट 915 देयर इज नोबडी इज
ट्राई टू सेल देयर स्टॉक, ये सबको पता है, बट व्हाट दे आर रेडी फॉर, वो किस चीज के लिए रेडी है? द बिग प्लेयर, व्हाई व्हाट दे आर बीन डूइंग हियर, व्हेन द मार्केट ओपन दे आर रेडी कि मार्केट कब खुलेगा और कब हम लोग बाइंग करना चालू करेंगे। सही बात है। तो आपको इंटरनेट पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको कोई सेलर नहीं दिख रहा, बट व्हाट इज द डार्क साइकोलॉजी, द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द मार्केट आर रेडी टू ओपन द मार्केट टू बाय इन द मार्केट। वो बड़ा फंड लेके बैठे हुए कि कब मार्केट खुले और कब हम लोग मार्केट में बाइंग करें। अब वो बाइंग कर रहे हैं तो पहले मिनट से आपको दिख रहा है कि फर्स्ट मिनट से ही बाइंग 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 करते करते मार्केट ऊपर के लेवल तक आ गया। अब यहाँ पे आपको ऊपर में भी कोई विक्स नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई विक्स नहीं दिख रहा है, राइट। नाउ व्हाट इट मीन, पहले यहाँ पे कोई विक नहीं दिखा, अब यहाँ पे भी कोई विक नहीं दिख रहा। लेट्स सपोज द मार्केट, दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट एंड इट इज क्लोज एट 120। हाई इसका मैं बना देता हूं, हाई सपोज टू बी 125। व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस, आई एम गेटिंग द बोथ मोर डार्कर साइकोलॉजी ऑफ दिस। द पीपल हु बॉट एट द ओपनिंग लेवल, यहां से सारे बायर चालू हुए जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए। मैं चेंज द कलर, दिस इज मूविंग 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 मूविंग। व्हाट वी आर डूइंग हियर, जहां से आपको पता चल गया कि मार्केट में फर्स्ट मिनट से ही बायर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं, दे आर लुकिंग द वेरी बायर्स 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 करते करते यहां तक मार्केट आ गया एंड देयर इज अ हाईएस्ट पॉइंट ओवर हियर। नाउ व्हाट यू कैन सी हियर, द पीपल हु बॉट एट द लोएस्ट पॉइंट, बाय 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 एंड मार्केट 125 पे चला गया। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, द प्राइस आर मूविंग फ्रॉम 125 टू द 120। व्हाई दिस इज ड्रॉप इज हैपनिंग, because the people who bought at the lower rate they are trying to sell at the higher rate। करेक्ट। तो मार्केट में कभी भी बड़ा प्लेयर ना आपको बॉटम पे बाइंग करता हुआ दिखेगा और टॉप लेवल व्हेन द प्राइसेस आर गेटिंग ओवर वैल्यूड वो हमेशा सेलिंग करता हुआ दिखेगा। तो मार्केट में सिंपल साइकोलॉजी है कि मार्केट में बड़ा प्लेयर कब आता है, व्हेन द प्राइस गेट ड्रॉप, वो कभी भी बाइंग करने के लिए हाई लेवल पे नहीं आएगा। सिंपल साइकोलॉजी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, द पीपल हु बॉट एट द बॉटम लेवल, the buyers, when the market get overly valued, all the buyers start becoming the seller at the top। तो बायर ही मार्केट में क्या बन रहा है, सेलर बन जाता है। एंड व्हेन दे बिकम द सेलर द मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो रहा है। करेक्ट। बट अगर मैं इस कैंडल के बारे में बात करूं कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रहा, इज नोबडी इज बीन बिकम द सेलर ओवर हियर, और यहाँ पे तो कोई हाई पॉइंट बना ही नहीं। What do you think that कि यहाँ पे अगर कोई हाई पॉइंट नहीं है मतलब मार्केट में कोई सेलर नहीं है, आ ही नहीं रहा। इट मीन दैट अगर डार्कर साइकोलॉजी में बात करूं तो जिसने बॉटम पे स्टॉक लिया है इज नो बायर इज रेडी टू सेल देयर स्टॉक, अपने पास उनको स्टॉक होल्ड ही करना है। करेक्ट। दे आर नॉट गोइंग टू सेल इनटू द मार्केट। जिस भी प्राइस पे क्लोज हुआ है इट इज स्टिल अट्रैक्टिव फॉर देम टू होल्ड। यस, सेंटीमेंट चेंज हो गया आपका। राइट। नाउ इफ आई बीन टेलिंग यू कि आपको कल डिसीजन लेना है, व्हाट यू विल डू, बाय। सिंपल। सो दैट सिंपल साइकोलॉजी, एक कैंडल देखा आपने, आपका डिसीजन रेडी हो गया एंड यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन। करेक्ट। एंड यू नो दैट द बायर्स आर एंटरिंग एंड मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाएगा। सो दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड द सेंटीमेंट एंड द सिनेरियो यू आर एबल टू टेक डिसीजन एंड योर डिसीजन शुड बी इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। करेक्ट। दैट इज द फर्स्ट। नाउ अगर मैं आपको इजीली पूछ लूं कि रेड कैंडल के ऊपर क्या समझ में आ रहा है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट, देयर आर सेलर्स इन द मार्केट एंड दे कीप सेलिंग। दे कीप सेलिंग, देयर इज नो नीड। यहाँ पे कोई लो पॉइंट नहीं बन रहा है, यानी कोई बायर, अगर मैं इसको बोल दूं कि यहाँ पे आपने जो मार्केट स्टार्ट किया था इट इज ट्रेडिंग एट 110 से स्टार्ट हुआ था और मार्केट अभी 100 पे खड़ा है एंड देयर इज नो लो पॉइंट, मीन इवन द प्राइस गेटिंग द डिस्काउंट ऑफ 10%, स्टिल देयर इज नो बायर आर इंटरेस्ट टू बाय इन दिस मार्केट। कोई भी बायर नहीं बाय करने के लिए रेडी नहीं है। तो आने वाले दिनों में स्टॉक के साथ क्या हो सकता है, will keep falling, keep falling, right? So when you understand the sentiment you are able to take decisions। तो ये पहला स्टेप है। लोगों को सब सिर्फ यही कर रहा है कि उनको सिर्फ बाइंग और सेलिंग करना है। दे आर नॉट एबल टू रीड द सेंटीमेंट बिहाइंड द मार्केट। एक सिंपली मैं इसको और डीपर में लेके चला जाता हूं। अगर आप सिंपल चीज पे फॉलो करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये तो 5th क्लास का मैथ्स है, हमको तो ये सब आता है। जब हम लोगों ने अपना ट्रेडिंग करियर शुरू किया था तो हम लोग को तो ये सारा चीज पता है। मैं इसको सिंपली जो इंडिया का टॉप बिगेस्ट इंडेक्स है, दैट इज द इंडियाज मोस्ट लवेबल इंडेक्स, दैट इज निफ्टी।
अगर मैं इसके चार्ट पे लेके चला जाऊं आपको, सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस सिंपली। अभी मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ इसको एंड चेक फ्रॉम हियर। एक थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके आज तक क्या हो रहा है वो देखेंगे हम लोग, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा। मैं एक सिंपल यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ दिख रहा है, छोटा सा कैंडल है रेड कलर का। अगर मैं रेड कैंडल की बात करूं तो व्हाट यू थिंक कि आपको ये रेड कैंडल देख के करना क्या चाहिए मार्केट में? व्हाट यू थिंक? सेल करना चाहिए। सिंपल है, सेल करना चाहिए। मैंने आपने कोई रिसर्च नहीं की, कोई आपने एनालिसिस नहीं किया, कोई न्यूज नहीं देखी, सिर्फ आपने देखा कैंडल का सेंटीमेंट की कोई बायर ऊपर में नहीं है, कोई सेलर नीचे से कोई बायर उसको पिक नहीं कर रहा है। So what you can get the understanding for the result, you'll take the decision of selling. What happened next day? Happening. What is actually happening to the market? It's not been small thing. अगर इसको मैं मेजर करने जाऊं तो ये निफ्टी का क्या फॉल हो सकता है, you are measuring from distance from here to here is approximately 1400 point fall within a 16 days. So you read a one right sentiment of the market, आपको पूरा 15 दिन पता चल गया मार्केट करने वाला क्या है। And when you understand the sentiment, you are able to take right decision. Right decision में भी अगर आप किसी भी तरह के ट्रेडर हो, आप इंट्राडे कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप पोजिशनल कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब आपको एक सेंटीमेंट पता चल गया मार्केट में, तो आप इंट्राडे या आप कौन से पोजीशंस में काम कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, कौन से डायरेक्शन में काम कर रहे हो ये मैटर करेगा। सो इंट्राडे प्लेयर है, उसको पता है मार्केट गिरने वाला है, तो कौन से डिसीजन में वो अपने ट्रेड प्लान करेगा। व्हेन द मार्केट इज नॉट गेम ऑफ ओनली बाइंग एंड सेलिंग, मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आप जब कोई ट्रेड प्लान करते हो, उसका विनिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके ऊपर आपका ट्रेडिंग का फ्यूचर डिपेंड करता है। करेक्ट। सो इफ यू हैव अ गुड विनिंग प्रोबेबिलिटी, आप ट्रेडिंग में सक्सेस कर जाओगे। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो आप कभी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। सो इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो वो डायरेक्शन में मार्केट मूव करना चाहिए, तभी जाके आपको तभी आपको सही डायरेक्शन मिलेगा, सही डिसीजन मिलेगा, सही स्ट्रेटेजी मिलेगी। सो वन स्टेप मेक द ऑल द सक्सेस स्टेप। बिल्कुल सही। इसको और एलोबरेट कर सकते हैं हम लोग, जैसे अभी सेलिंग का बताया, तो मैं आपको बाइंग का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, 2 मिनट में खत्म। एग्जांपल देके फिर आगे स्ट्रेटेजी पे चलेंगे। सो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आपको सिंपल एक सेंटीमेंट आपने रीड किया कि देयर इज नो बायर एट ऑल, सो मार्केट फॉल हो गया। अब मैं ऐसे ही एग्जांपल में आपको आगे लेके चल रहा हूँ। मार्केट फिर ऊपर गया, यहाँ पे देखिए, you can see the sentiment again, the selling sentiment, there are no buyer interested. Can you see the price momentum? Correct. What happened? You just read the sentiment at this top, market get falled. सही बात है। अब ये छोटी सी कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, market get falled. This is the very small candle over here. This is a good fall from here, where you read the sentiment, there is no buyer interested at all. Now what you can understand with this, क्या हो रहा है यहाँ पे मार्केट खुलते बराबर? व्हाट यू थिंक कि मार्केट में बाइंग बढ़ रहा है पहले मिनट से, या मार्केट में सेलिंग बढ़ रहा है? द कैंडल इज नॉट विजिबल बट या बाइंग। थोड़ा सा मूव कर लीजिए, पोजीशन बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। हाँ करेक्ट, या तो बाइंग हो रहा है अब तो। क्लियर है? यस। आर यू श्योर सर? यस यस, 100% श्योर। व्हाट डिसीजन यू कैन टेक हियर? या बाइंग। आप बाइंग करना पसंद करोगे। So you understand the sentiment, there is no confusion in your mind. बिल्कुल नहीं। तो लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, there is lot of confusion in their mind to take decisions. When there is no confusions, you will take the right decision in the right direction of the market. What happened to the price? It has not been small move. अगर मैं इसको मेजर करके दिखाऊं आपको, ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है। मार्केट मूव कर गया है 1800 पॉइंट निफ्टी विद इन 13 कैंडल 13 दिन में। ऑन एन एवरेज मार्केट रोज 120-30 पॉइंट रोज का दिया है मार्केट ने आपको। सो वंस यू अंडरस्टैंड द सेंटीमेंट, यू आर टेकिंग द राइट डिसीजंस। सही बात है। सो क्या लगा सर, क्या लगा आपको कि ये कोई रॉकेट साइंस है मार्केट में पैसे बनाना? आई एम टॉकिंग अबाउट द निफ्टी 1800 पॉइंट विद इन अ मंथ। लुक्स वेरी सिंपल। यस, सिंपल टू फॉलो। सो सिंपल को लोग फॉलो नहीं करते, दे वांट सम थिंग इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग, लोगों को तड़का चाहिए, फैंसी चाहिए। राइट। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आदमी पहले बैलगाड़ी से चलता था, उसका भी जो हम लोग जो बोलते हैं टायर या चक्का जो होता है वो गोल था। आज आदमी रोल्स रॉयस से चलता है,
उसका बेस नहीं चेंज हुआ. द टायर ऑफ अ रोल्स रॉयस नॉट गोइंग टू ट्रायंगल और द सर्कल, ट्रायंगल और द स्क्वायर. सो मार्केट, आदमी अपने बेस को भूल जाता है. प्राइस का बेस है. एवरी मार्केट इज डिपेंड ऑन द प्राइस. प्राइस को अगर नहीं समझोगे तो आप मार्केट में कभी सक्सेस नहीं ला पाओगे. ठीक है. सो व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्राइस, सक्सेस बहुत नियर हो जाएगा आपके. ठीक है, वेरी गुड. आई थिंक ये एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया है और बहुत अच्छा भी लग रहा है. सिंपलिस्टिक वे में आप समझा रहे हैं मार्केट को. सिंपल टू फॉलो भी होगा किसी बिगिनर के लिए. जी. जो आप स्ट्रैटेजीज आजकल फॉलो कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी की पहले, कि आप बताएंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो हर एसेट क्लास में भी यूज आप कर सकते हैं, उसको एक पकड़ के डीप डाइव करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अभी हम लोगों ने मार्केट के बेस को समझा. अब आप समझिए कि मार्केट के बेस में अगर उसको इतना बड़ा बेस मिल रहा है, निफ्टी इज मूविंग 1800 पॉइंट, 2000 पॉइंट. अब इसको मैं अगर और थोड़ा सा इसके डीपर साइकोलॉजी में चले जाऊं तो वो बहुत डीप हो जाएगा, बहुत डार्क साइकोलॉजी हो जाएगा, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बड़े प्लेयर कहाँ पे एंटर कर रहे हैं. दैट व्हाट वी कॉल द सपोर्ट ऑफ द मार्केट. कि बड़ा प्लेयर आएगा. एक लॉजिकली अगर मैं बात करूं आपसे, अगर कोई बड़ा प्लेयर मार्केट पे आना चाहता है, ही वांट टू इन्वेस्ट 10,000 और द 20,000 करोड़ इन द मार्केट इन अ डे, क्या वो कोई विदाउट स्ट्रेटेजी या विदाउट स्टडी या विदाउट एनी काइंड ऑफ न्यूज ही विल कम? नहीं. अब उसको अगर 10,000 करोड़ मार्केट में लगाने हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इनसाइट है उसके पास. ही हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट. की 10,000 करोड़ वाला बेवकूफ नहीं है. ही हैव ऑल द, उसके पास हर चीज, वो चीज है जो उसको पता होनी चाहिए मार्केट के बारे में. सो नॉर्मली जब मार्केट में बड़ी कैंडल्स बनती है, तो बड़ी कैंडल्स इज बिन मेड बाय द बिगेस्ट प्लेयर, नॉट बाय द रिटेलर. रिटेलर में इतना दम है ही नहीं कि वो कोई बड़ी 300-400 पॉइंट की निफ्टी की रैली प्लान करे. अब ये बड़े प्लेयर रिटेलर के इमोशन के साथ कैसे खेलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. इट विल मोर डीपर विद द साइकोलॉजी ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न. इसमें आपको और ज्यादा डीपर और मजा भी आएगा. वो तो थ्रिलिंग चाहिए ना आपको, वो अभी शायद यहाँ से मिलना चालू होगा. मैंने तो अभी सिर्फ आपको बेस समझा है. इट इज जस्ट बिन द ट्रेलर. अभी पिक्चर, लेट्स स्टार्ट विद द पिक्चर. नाउ अज्यूम दैट कि मार्केट में एक दो कंट्रीज का वॉर चल रहा है. सपोज रशिया एंड यूक्रेन वॉर इज गोइंग ऑन. व्हाट काइंड ऑफ सेंटीमेंट आपका पोर्टफोलियो 1 CR का, व्हाट यू विल डू? आप क्या करेंगे सिंपली? मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ. आई स्टडी द कंपनी फंडामेंटल्स. तो मैं तो इन्वेस्ट करूंगा कंपनी फंडामेंटल. नहीं, वॉर जस्ट स्टार्ट हुआ है, न्यूज आ गया मार्केट पे कि वॉर स्टार्ट हो गया है. एंड द रशिया बिन द मेन प्लेयर. ठीक है. कि वॉर वो कुछ तो भी करने वाला है बड़ा. ठीक है. तो आपके दिमाग में क्या सेंटीमेंट आना चालू हो जाएंगे? फेयर आएगा कि मार्केट में क्या होगा. फॉलिंग द मार्केट. आपके दिमाग में एक डर. ज्यादातर लोगों में फेयर आएगा. तो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, दे विल बी स्केयर्ड. दे विल फेयर कि इस न्यूज का क्या इम्पैक्ट आएगा. तो मार्केट ओवरऑल विल बी फेयरफुल. अगर मैं आपको बोलूं ये सारी न्यूज मार्केट में बनाई जाती है टू पीपल गेट स्केयर्ड, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑन द चार्ट, इट विल बी रियलिस्टिक. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द साइकोलॉजी द ट्रेडर्स वांट. सिंपल ये चीज है कि when the big player want to invest their money with the big amounts, they want at the fair values. करेक्ट. अगर मार्केट ऊपर है तो 100 रुपए की चीज 110 में मिल रही है तो वो 10,000 करोड़ लेके नहीं आएगा. सही बात है. उसको प्राइस चाहिए 70 या 80. दैट इज गेटिंग द, वी कैन से दैट वो एकदम अंडर वैल्यूएशन उसका होना चाहिए. बिल्कुल. तो बड़ा प्लेयर तब आएगा मार्केट में जब मार्केट अंडर वैल्यू हो जाएगा. यस. नाउ लेट्स सपोज मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ. दिस इज व्हाट द सिनेरियो इज. दिस इज द निफ्टी ट्रेडिंग ऑन, और यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ है एंड यहाँ पे एक न्यूज आ रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर होने वाला है. एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे ये होता है कि मार्केट खुलता सीधा 1100 पॉइंट गैप डाउन है. दिस इज गैप डाउन ओपनिंग. आप 1 करोड़ के पोर्टफोलियो के साथ बैठे हो एंड द निफ्टी डायरेक्टली ओपन हियर 1100 पॉइंट निफ्टी माइनस. आपका थॉट प्रोसेस किस तरह का होगा? यू विल ट्राइंग टू सेल कि मार्केट क्रैश कर जाएगा. आपके अंदर न्यूज एक डर बनाना चालू करती है. व्हाट द पीपल्स, द बिग प्लेयर्स वांट, तो दे क्रिएट द सिनेरियोस. एंड अब अगर इसको मैं ऐसा दिखाऊं आपको कि मार्केट में ये सिनेरियो क्रिएट किया कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, मार्केट डायरेक्टली ओपन 1100 पॉइंट डाउन,
what the biggest player of the market are doing when the market open at the 1100 point gap down. यहां से market opening है. That make me little bigger for you. This is the bigger point. कि जैसे ही market open हो रहा है, बड़ा player कर क्या रहा है? What they are doing when the market open at this place? What they are doing, sir? They're buying. Is it intentionally they are doing? Yeah, of course. मार्केट ओपन होते बराबर रिटेलर तो बाय करने नहीं आ रहा है. बिल्कुल. राइट. So let's check what the sentiment after this, what happened to the market exactly when they start buying and buying. What happened to the market? It's move approximately सारे रिटेलर का माल सेंटिमेंट बना के बड़ा प्लेयर उड़ा ले गया. It's 2600 point nifty run from only one sentiment. What you know when the market open 1100 point gap down, पहले मिनट से आपको पता था बड़ा प्लेयर कर क्या रहा है. It's a 2600 point, and if you were wondering, it done with the 9 days. Now then, it's making 250 rupees per day. निफ्टी ऊपर ले गया, रिटेलर देखता रह गया. ना उसको एंटर करने का चांस दिया, ना उसको एग्जिट करने का चांस दिया. उसका सारा माल सबसे बॉटम एरिया पे लेके. दिस इज द एक्चुअली द गेम हैपनिंग विद द मार्केट. रिटेलर्स नेवर व्हेन कॉन्सेंट्रेट दिस थिंग विल हैपन. और ये चीज बताएगा सिर्फ आपको कैंडलस्टिक. वन सेंटीमेंट आपने रीड किया, आपको पता चल गया मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, आपका डायरेक्शन आपको समझ गया, आपके डिसीजन आप उस डायरेक्शन में ले लोगे. और सिंपली देयर इज नो रॉकेट साइंस टू मेक मनी इन द मार्केट. रिटेलर्स मेक अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस टू देयर स्टडीज, रिसर्च. कोई बड़ा बात नहीं है कि मार्केट में हमको बड़े सेंटीमेंट के साथ कैसे काम करना है. सही है, सही है. सो देयर इज दैट काइंड ऑफ डार्क साइकोलॉजी. आपको सिर्फ कैंडल स्टिक्स ही बता सकता है. अगर मैं आपको इंडिया पाकिस्तान का भी एग्जांपल दे दूं यहाँ पे कि इंडिया पाकिस्तान, इफ यू नो द इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था. हाँ जी. एंड ट्रम्प साहब ने बोल दिया था कि वील फाइनेंस पाकिस्तान. क्या लगता है आपको कि जब मार्केट गैप डाउन हुआ, दिस इज द सिनेरियो, मार्केट गैप डाउन हुआ था निफ्टी 500 पॉइंट. सिनेरियो को समझिए सर, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा है. वी आर बीन इंडियंस और हम वॉर कर रहे हैं अपने पड़ोसी के साथ. दैट मेक बी, अब पाकिस्तान कुछ भी कर सकता था वो टाइम पे. दे कैन एटोमिक बम जो डाल सकते हैं वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते थे. एंड द ट्रम्प सेड दे विल फाइनेंस पाकिस्तान. व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो दे हैव? Market open again from here to 500 point negative. What the biggest player of the market are doing from the opening of the market? They're buying. उनको नहीं पता सर इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, ट्रम्प उनको सपोर्ट कर रहा है. How confidently they are doing from the opening minute of the market? Retailers are making fools. What happened to the price again within some days? What actually happened to the market? It becomes skyrocket again. So रिटेलर का पैसा हैंड एंड हैंड ट्रांसफर होते रहता है बड़े प्लेयर्स को, बिकॉज पीपल्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सेंटिमेंट. आर यू थिंक दैट आई बीन टीचिंग एनी काइंड ऑफ रॉकेट साइंस इन दिस? कितना समय लग गया हमको ये चीज समझने के लिए. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द 1000 पॉइंट रैली इन द निफ्टी. रिटेलर दिन भर भागता रहता है कि मुझे 50 पॉइंट मार्केट में मिल जाए, निफ्टी में 100 पॉइंट में कमा लूं, इंट्राडे में 10-20 पॉइंट का मेरा टारगेट हो जाए. एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द बिग प्लेयर. लाइक अ बिग प्लेयर, दे हैव बीन ट्रेडिंग फॉर द 1000 points in the market with a very short time. Right, correct. So कहीं ना कहीं रिटेलर को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और इन चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाके उनकी ट्रेडिंग में निखार आएगा. The people are ignoring कि सर ये तो बेसिक है. करेक्ट, या बढ़िया. तो आई थिंक बेस बहुत अच्छा क्लियर हो गया. इज देयर अ स्ट्रेटजी दैट वी कैन डू अ डीप डाइव इनटू? यस, डेफिनेटली वी कैन डू द. इसमें इतनी स्ट्रेटेजीज बन सकती है सर जितना आप सोच नहीं सकते. सो व्हाट आई फील कि द पीपल्स हु आर बीन सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ मार्केट, अब उसके लिए इट्स लाइक अ डीप ब्लू सी. एंड रिटेलर्स का थिंक होता है कि एक दिन में मैं सारा समुंदर पी जाऊं. ही वांट टू लर्न एवरीथिंग एंड ही वांट टू ट्राई एवरीथिंग. सो व्हाट वी सजेस्ट टू द न्यू पीपल्स और द ट्रेडर्स कि आप पूरा समुंदर पी नहीं सकते हो. आपका प्यास एक गिलास बुझा सकता है, 1 or 2 ग्लास. उससे ज्यादा आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. द पीपल्स आर डीप डाइविंग टू फाइंड द ट्रेजर इन द मार्केट.
वो डाइव करते रहते हैं, वो समुद्र में ट्रेजर ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो डूब जाते हैं। सो आपका काम है कि आपके लिए 1 या 2 ग्लास का पानी आपका प्यास बुझा देगा। अब उस 2 ग्लास के पानी को आपको कहाँ ढूंढना है? सो व्हाट वी सजेस्ट कि अगर आपको बेस्ट ट्रेडर ऑफ द मार्केट बनना है तो यू हैव टू बिकम द स्पेशलिस्ट इन द समथिंग। करेक्ट। लाइक मेरे आगे सूरज है, अब सूरज से हमको बहुत सारा एनर्जी मिलता है, बट क्या एंटायर सूरज के सामने मैं पूरा दिन खड़ा रह के उसको देख सकता हूँ? नहीं देख मैं सकता। 2 मिनट भी सूरज के सामने देखूंगा तो मेरा आंख का रोशनी, बिकॉज द मोर आई बीन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सन, वो मेरे लिए हानिकारक है। वैसा ही मार्केट है। तो रिटेलर वो चीज नहीं समझ पा रहा है कि ज्यादा ट्रेडिंग और अननेसेसरी ट्रेडिंग उनके लिए हानिकारक है। सो व्हाट वी नीड कि अगर इफ आई बीन टॉकिंग टू द सन या मैं सन से बात कर रहा हूं तो मेरे को सन का सिर्फ एक रेज चाहिए टू फुलफिल माय ड्रीम्स। सो व्हाट वी सजेस्ट कि आपके पास हजारों स्ट्रेटेजीज है काम करने के लिए, यू हैव टू मास्टर वन। लोग रोज नया स्ट्रेटेजी ट्राई करते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो देर आर 1000 स्ट्रेटेजी, देर आर 1000 वीडियोज यू कैन फाइंड ऑन द यूट्यूब। वो रोज एक नया वीडियो ढूंढता है, रोज एक नया स्ट्रेटेजी ढूंढता है और उसके पीछे भागता है। इस लाइक मैंने सीए ट्राई कर लिया, अब मैं डॉक्टर बनता हूँ, अब मैं इंजीनियर बनता हूँ, अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता हूँ, अब मैं जाके कुछ और कर लेता हूँ और मैं बिजनेस कर लेता हूँ। इट्स लाइक दैट। राइट, बिल्कुल सही। अगर मुझे कोई बीमारी है एंड आई वांट टू बी द एडवांस ट्रीटमेंट, सो आई नीड टू गो टू द स्पेशलिस्ट। करेक्ट, यस। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप किसी चीज में एक स्पेशलिस्ट बन जाओ। और स्पेशलिस्ट का डेफिनेशन एज अ ट्रेडर हम लोग ये बोलते हैं कि द स्पेशलिस्ट, द पर्सन इज स्पेशलिस्ट हु नोज एवरीथिंग अबाउट समथिंग। एक ऐसा स्पेशलिस्ट होता है जो एक चीज के बारे में सारी चीजें जानते हैं। हम लोग करते उल्टा, हम लोग एक चीज के बारे में, हम सारी चीजों के बारे में एक एक चीज जानते हैं। दैट इज व्हाट द रिटेलर्स ट्रैप। ये उसको करना बॉलिंजर बैंड भी है, उसको करना EDX भी है, उसको करना RSI के इंडिकेटर्स भी है, उसको वो पिवट पॉइंट भी करना है, उसको सारे इंडिकेटर करने हैं दुनिया के। सो आई सजेस्ट द पीपल्स हु कैन मैनेज। अगर आपको मैनेज करना है, एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो एक स्पेशलिस्ट बन जाओ किसी चीज का। एक ही चीज को बार बार करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। करेक्ट। बिकॉज आप एक दिन उसके स्पेशलिस्ट बन जाओगे, जो मुझे करने में 20 साल लग गए सर। एंड अब मैं उसके रिजल्ट एंजॉय कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन के स्पेशलिस्ट हैं। मैं कैंडलस्टिक का स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है। तो कैंडलस्टिक यानी प्राइस इज द मेन फैक्टर। मैंने आपको बोला कि देयर आर thousands of बाय प्रोडक्ट यू कैन मेक, बट इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन प्रोडक्ट, वही आपको सक्सेस की तक लेके जाएगा। ठीक है सर, आप स्ट्रैटेजी पूरा अच्छे से समझते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसको, कैसे मास्टरी ले सकते हैं उसमें। अब जैसे मैंने आपको कैंडलस्टिक के एक बेस में समझा दिया कि कैंडलस्टिक इज द मार्केट, रियल मार्केट का मिरर है। आप उसको अगर पढ़ना सीख जाओ तो आपको ये पता चल जाएगा मार्केट करने वाला क्या है। नाउ लेट्स गोइंग टू द डीप डाइव। अभी डीप ब्लू सी में एक डीप डाइव करते हैं एंड फाइंड द ट्रेजर्स। अगर मैं फाइंडिंग ट्रेजर की बात करूंगी, ट्रेजर को कैसे फाइंड किया जाता है। सो अगर मैं मार्केट में देखूं कि देयर आर 1000 टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर मैं आपको आज से सिखाना चालू कर दूं कि देयर आर कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके अगर मैं पैटर्न, बहुत लोगों को लगता है कि हमको तो कैंडलस्टिक के बारे में बहुत नॉलेज है। इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, मार्केट में पैटर्न किस तरह के होते हैं कैंडलस्टिक के, देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न। लाइक मार्केट में बुलिश एंड द बेरिश। एक पैटर्न हमको बताएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, दूसरा पैटर्न बताएगा मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, कुछ एक पैटर्न हमको बता दे कि मार्केट कोई डायरेक्शन में नहीं जाने वाला, मार्केट डायरेक्शन लेस है। करेक्ट। नाउ इफ आई एम गोइंग टू द बुलिश पैटर्न, अब यहाँ पे भी हो सकता है कैंडल, एक कैंडल का सिंगल पैटर्न बने। ठीक है। हो सकता है मार्केट 2 कैंडल बना के एक पैटर्न बनाए। ये वेबसाइट कौन सी है सर? टॉप स्टॉक रिसर्च। इसमें स्कैनर्स बन जाते हैं बेसिकली। बना सकते हो आप, इसमें आप चार्टिंग पे भी स्कैनर्स बना सकते हो। एंड दिस इज फ्री टू यूज। करेक्ट, ग्रेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न की 2 कैंडल बन के एक पैटर्न बन सकता है। देयर आर 3 कैंडल बन के भी एक पैटर्न बन सकता है, और देयर आर मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। करेक्ट। अब बहुत लोगों को इनमें से नाम तक लोगों ने सुने नहीं होंगे और बोलते हैं कि हम कैंडलस्टिक के बारे में सब जानते हैं। सो दैट ओवर कॉन्फिडेंस समटाइम किल देम। करेक्ट। सो इस तरह के पैटर्न्स होते हैं मार्केट में। अगर मैं आपको बोलूं कि कल से मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाता हूं, कितना दिन लग जाएगा आपको ये समझने के लिए कि बुलिश में 1 2 3 4 5 और बेरिश में 1 2 3 4 5 और नॉन डायरेक्शन में 1 2 3 4 5।
हाउ मेनी टाइम यू थिंक कि कितना समय लग सकता है मेरे को ये समझने और उसको इम्प्लीमेंट करने में? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, महीनों लग जाएंगे। टेक हम लोग जो नॉर्मली बोलते हैं ट्रेडर्स को, यू हैव टू गिव 5 years टू बिकम द ट्रेडर इन द मार्केट। उसको 5वें दिन से ट्रेडर बनना होता है। सो इट टेक टाइम। सो अगर मैं इतना स्टडी आपको बता दूं कि इतना स्टडी करने के बाद आप सही मार्केट को एनालाइज कर पाओगे, सो आई डोंट थिंक कि आप ये सीखने के बाद भी आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसको मैं लाइव मार्केट में अप्लाई करके इसका स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट करके एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊं। इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई इन द लाइव मार्केट, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन होता रहेगा। सो व्हाट आई सजेस्ट कि आप इसको सिंप्लीफाइड कर दो। सिंप्लीफाइड इन द सेंस, सिंप्लीफाइड कब होगा? जब आपके माइंड में कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। सो जैसे मैंने आपको बोला कि सन इज नॉट बीन यूजफुल, कंप्लीट सन इज नॉट यूजफुल फॉर मी। सन का कुछ रेज मेरे काम का है। करेक्ट। सो एवरी कैंडलस्टिक पैटर्न विल नॉट गिव यू द मनी। हर कैंडलस्टिक आपको पैसा नहीं दे सकती, लेकिन मार्केट में कुछ एक पैटर्न ऐसे बनते हैं जो आपको लाखों रुपए दे सकते हैं। ठीक है। सो वी आर कटिंग द नॉइज एंड वी आर सिलेक्टिंग व्हाट इज बीन यूजफुल फॉर अस। तो बचपन में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, कि मेकिंग द फ्रंट ऑफ सन, एक रेज निकलती है, कलेक्शन होता है और एक हमारा पेपर बर्न होना चालू हो जाता है, फोकल पॉइंट बन जाता है। तो वो वोकल पॉइंट हमको काम करना है ट्रेडिंग के कंसेप्ट में। सो वी आर नॉट बीन यूजिंग द एंटायर सन, वी यूज सम रेज टू फंडिंग अवरसेल्फ। यस। सो उसको कैसे करना है, उसको स्पेशलिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ द पैटर्न के मैंने कुछ एक स्कैनर बना के रख दिए यहाँ पे, कि मैं देख लेता हूँ कि मेरे स्कैनर में क्या स्टॉक्स आ रहा है। जैसे यहाँ पे भी आपको फ्री में मिल जाएगा ये चीज। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि एक पैटर्न है बुलिश मोरुबोजू या बुलिश एंगल्फिन पैटर्न, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड फाइंडिंग रन और दिस वन कैंडलस्टिक पैटर्न ही बोल रहा है ये। तो मैं एक ही पैटर्न कर देता हूँ यहाँ पे, आई विल मेक रन दिस सॉफ्टवेयर। तो जैसे मैंने रन किया, मेरे सामने जिस स्टॉक्स पे ये पैटर्न बना है उन सारे के नाम आ गए। अब मुझे ये पता चल रहा है इससे कि जो पैटर्न मैं फाइंड करना चाहता हूं वो ऑटोमेटेडली 2 सेकंड में मुझे मिल जाता है। यानी मेरा जो रिसर्च करने का टाइम है, आई कट द नॉलेज, कि मैं सिर्फ इसी पैटर्न पे काम करूंगा और जिंदगी भर इसी पैटर्न पे यूटिलाइज करूंगा इसको। सो आपका नॉइज कट हो गया, आपका कंफ्यूजन कट हो गया। नाउ यू हैव टू बिकम द स्पेशलिस्ट ऑफ दिस पैटर्न। करेक्ट। तो जो कंफ्यूजन था, जो नॉइज था, अब आप इसके ऊपर, इसको फोकसली काम कर लो, इसको डेडिकेटली काम कर लो, इसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट बना लो, इसके ऊपर प्लानिंग कर लो। दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। तो आपने पहला काम किया कि आपका कंफ्यूजन और नॉइज को कट किया। यू हैव बीन कॉन्सेंट्रेटेड। अब आपके दिमाग पे कंफ्यूजन है, डू यू थिंक दैट कि अभी मैंने पैटर्न नहीं समझाया आपको, अब आपके सामने 5 चीजें हैं और एक ही पैटर्न की 5 चीजें हैं। करेक्ट। तो आपका दिमाग में क्या हो गया कि मुझे पैटर्न पे काम करना है और मैं इसी पे काम कर लूंगा। ठीक है। आपका नॉइज कट हो गया, यू हैव बीन गेटिंग द फ्रूट। अब इसको खाना कैसे है? आपके पास ये सिलेक्शन आ गया। कितना टाइम लगा सर स्टॉक सिलेक्ट करने को आपको? हार्डली 1 मिनट। इट्स बीन 1 मिनट वर्क। 1 मिनट में आपके पास स्टॉक आ गए। अब ये पैटर्न काम कैसे करता है, हाउ दिस वर्क, उसको समझते हैं। कि मैंने आपको सिलेक्शन ऑफ स्टॉक आपका 1 मिनट में कर दिया। जो रात भर रिसर्च करते बैठते हैं, स्टडी करते बैठते हैं, इंडिकेटर लगाते बैठते, नो यूज। तो अभी आपने बुलिश एंगल्फिन 2 डेज वाला पिकअप किया। बुलिश एंगल्फिन पैटर्न का, हाँ, 2 पैटर्न का ट्रेड है ये। मैं आपको बता देता हूँ कि दिखता कैसा है ये। दिस इज द बुलिश एंगल्फिन पैटर्न। करेक्ट, यस। ठीक है। एक ग्रीन कलर का कैंडल रेड कलर के कैंडल को एंगल्फ कर लेता है, उसको हम लोग बुलिश एंगल्फिन। अब नॉर्मल सिंपल साइकोलॉजी में आपको इसमें समझ क्या आ रहा है? इसके बाद बुलिश ट्रेंड शुरू होगा। The bulls are been bigger, correct, like a mother or a father, and red like a baby. Yes. So he's looking more powerful. Yeah. The bullish one, the mother one. Bullish one. अब सोचिए इसको और लॉजिकल में मिलेगा। The market has given this pattern, मतलब आने वाले दिनों में मार्केट में होने वाला क्या है? बुलिश जाएगा। बुलिश जाएगा। Yes. Right. So you get the direction. Now, according to the direction, you have to set the trade. कि आपके पास डिसीजन आ गया, आपके पास सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स आपके पास आ गए। 5 स्टॉक्स हम लोगों ने निकाले। 5 में से मेरा डायरेक्शन मेरे को पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब इसके हिसाब से मैं अपना प्लानिंग करूंगा रिस्क का। हाउ कैन आई प्लान द रिस्क? तो नॉर्मली अगर बड़ा प्लेयर को मार्केट में आना है तो मार्केट का लोकेशन क्या होना चाहिए एज पर द प्राइस? इट शुड बी एट द ओवर वैल्यूड एरिया और द अंडर वैल्यूड एरिया।
नहीं, आपने बोला ऊपर जाने वाला है तो मार्केट अगर किसी बड़े प्लेयर को इन्वेस्ट करना आना है तो मार्केट का आपका लोकेशन क्या होना चाहिए, प्राइस अंडरवैल्यूड होना चाहिए, तभी वो बाय करेगा, राइट। सो आप ये रूल हमेशा ध्यान में रख सकते हैं कि व्हेनेवर मार्केट वांट टू बड़ा मूव करने वाला होगा, उसके पहले मार्केट पे हमेशा बड़ा करेक्शन रहेगा। करेक्ट। सो इफ आई टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सम स्टॉक्स, लाइक आई एम टेकिंग एज अपोलो हॉस्पिटल का ले लेते हैं, या डिलीवरी का ले लेते हैं, या अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेड मेरे सारे पार्टिसिपेंट के प्लान किया था इन द लास्ट मंथ, दैट इज वीबीएल। तो ये एकदम रिसेंट एग्जांपल है, वरुण बेवरेजेस, यस, ठीक है, एकदम रिसेंट वाला एग्जांपल हम लोग प्लान कर रहे हैं। लेट मेक द वीबीएल, वरुण बेवरेज का एक एग्जांपल मैं आपके साथ ले रहा हूं, हाउ यू कैन प्लान द ट्रेड्स। ठीक है, नाउ दिस इज द प्राइस, दिस इज द वीबीएल चार्ट, कैन यू सी क्लियर? यस। नाउ अभी आप देखिए इसमें एनालिसिस कीजिए कि व्हाट हैपेंड टू द प्राइस, continuously falling, kept falling, it means there is a undervalue stock. अब हमको पता करना है कि बड़ा प्लेयर आ कब रहा है। लेट्स चेक, यहाँ पे दिखा आपको एक पैटर्न बन के क्रिएट हो गया, दिस इज बुलिश एंगल्फिंग बन गया, एंगल्फिन बन गया। तो आपके पास सेंटीमेंट क्या बन गया, कैन सी द टॉप ऑफ द लेवल फ्रॉम हियर, दिस 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 and the bigger player are entering at this area. मतलब ये आपके स्कैनर में आपके पास आ गया स्टॉक, कि आप जैसे ही चार्ट खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्राइस कौन से लोकेशन पे खड़ा है। ठीक है, एकदम बॉटम में खड़ा है, बेस्ट प्राइस टू एंटर विथ फॉर द बिग प्लेयर। अब कैंडलस्टिक ने कंफर्मेशन क्या किया, दैट बिग प्लेयर ऑलरेडी एंटर इन द मार्केट। करेक्ट, ठीक है, आपको ये पता चल गया कि बड़ा ग्रीन कैंडल है जिस whose angle the red candle previously means the big players are already enter in the market. अब नॉर्मली आप YouTube पे अगर चले जाएंगे तो आपको ये सिखाया जाता है कि जब ये बड़ा प्लेयर के प्राइस हाई के ऊपर जाएगा तब आप एंटर करते हो, एंड यू मेक द स्टॉप लॉस ओवर हियर लाइक दिस, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट स्टॉप लॉस। यस। अब नॉर्मली आप ये सोचिए कि 500 रुपीज का शेयर है, तो नॉर्मली आप कितना शेयर इसमें बाई करना पसंद करेंगे as per your risk appetite? Correct. So 2-3% whatever risk management you are following, yes. Right. So there is the quantity. अब यहाँ पे भी बहुत बड़ा गलती होता है, मैं इसको थोड़ा सा एंड में एलोबरेट कर दूंगा कि क्वांटिटी और रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। फर्स्ट वी लुक इन दिस मैटर। सो मेरा रिस्क है 15 रुपीज का। अब सबसे बड़ा जो धर्म होता है हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी का, वो ये होता है कि हमको सबसे पहले कोई भी ट्रेड में अपनी रिस्क को कम करना है। We have to take the limited risk because we have a limited capital. If I've been taking the 15 rupees risk, अगर मैं 15 रुपए का रिस्क कोई ट्रेड पे लेता हूं तो अकॉर्डिंगली वी प्लान द टारगेट ऑफ एटलीस्ट, अगर मैंने 1 रुपए का रिस्क लिया है तो मेरा जो टारगेट है 15 रुपीज का रिस्क लिया, तो नॉर्मली माई टारगेट इज 30 रुपीज, राइट। सो देयर इज व्हाट द रिटेलर्स थिंक, यस, कि मैंने 15 रुपए का रिस्क लिया तो मुझे 2 रुपीज तो 2 टाइम्स तो मिलना चाहिए। नाउ व्हाट द बिगेस्ट प्लेयर आर डूइंग, they are reducing the risk and they are getting the same target. तो अगर मैं आपको इसमें एंट्री करने का एक तरीका बता दूं कि आपको इतनी बड़ी रिस्क लेना नहीं है, यू कैन टेक एट द बॉटम लेवल। अब आप यहाँ पे एंट्री लगा दो, दैट इज व्हाट वी कॉल द मीडियन पॉइंट। इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजी है, अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं आपको उसका साइकोलॉजी समझा दूंगा। व्हाट आई बीन टेकिंग, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रिस्क ऑफ 15 रुपीज, मैंने अपनी एंट्री शिफ्ट कर दी थोड़ा नीचे में, तो मेरा जो 15 रुपीज का रिस्क था, कैन यू सी दिस इज reduced by directly 50%. Yep. So that is what I'm managing the risk. पहले मैंने रिस्क को 50% घटा दिया. That is the धर्म of a trader. ट्रेडर का धर्म है कि अपनी रिस्क को पहले कैपिटल, मैंने अपने टारगेट को नहीं चेंज किया. एंड दिस इज द रिसेंट ट्रेड, एवरी पार्टिसिपेंट ट्रेड लाइव विद मी. ये सारे ट्रेड मेरे लाइव होते हैं. नाउ कैन यू सी दिस ऑटोमेटेड प्राइस आपके एंट्री लेवल पे आ रहा है. एंड व्हाट इज हैपेंड टू द मार्केट, चेक चेक चेक, 2-3 दिन एंड इट्स बीइंग लाइक अ बूम. सो आपको स्कैनर में 1 मिनट में पता चल गया था जब आपने चार्ट खोला कि बड़े प्लेयर ने कहां पे एंटर किया है, आपकी रिस्क को कैसे मैनेज करना है, अपने टारगेट को कैसा बड़ा करना है. इजी टू अंडरस्टैंड? यस. इज एनी रॉकेट साइंस टू डू दिस? कोई रॉकेट साइंस लग रहा है? ये हम लोगों ने यूज किया सिर्फ कैंडलस्टिक का. एम आई फाइंडिंग एनी इंडिकेटर, एनी फैंसी टूल, जस्ट अ सेंटिमेंट. तो आपके पास ऐसे हजारों चीजें हैं
जिसमें आप मास्टरी कर सकते हो, सिर्फ हम उसको कैजुअल वे में लेते हैं। आप इसका जिस दिन सीरियसनेस समझ जाओगे तो उस दिन आपको ट्रेड का वैल्यू समझ में आने लगेगा। एवरी मिनट अगर आप स्टडी करते हो तो हर एक मिनट आपको उसका रिटर्न देती है। डीप डाइविंग जिसको हम लोग मार्केट में बोलते हैं कि आप अगर 1 मिनट मार्केट में देते हो तो मार्केट आपको हजारों रुपए उसके दे सकता है, एक राइट स्टडी और एक राइट स्ट्रैटेजी बनाने का। बिल्कुल सही। ऐसे में आपको हजारों एग्जांपल दे रहे। ये तो मेरा रिसेंट ट्रेड है मेरे हर पार्टिसिपेंट का। एंड अब हम लोग आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट और इसको कैसे आप बड़ा पैसा बना सकते हो सिंपल स्ट्रैटेजी पे। सो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे एक अगर स्टॉक है मेरा, दिस इज द VBL स्टॉक एंड इट इज ट्रेडिंग एट 440 रुपीज। नॉर्मली अगर मैं 1000 क्वांटिटीज को परचेस करने के लिए जाऊं सो इट मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,40,000 रुपीज। ठीक है। अब ये बहुत बड़ा गेम है रिटेलर्स के लिए कि उसके पास 4,40,000 नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जाते हैं ऑप्शंस में, ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के जाते और अपना सारा कैपिटल जीरो कर लेते हैं। व्हाट इंस्टेड ऑफ डूइंग द ऑप्शन व्हाट आई प्रमोट कि 4,40,000 नहीं है आपके पास तो आप वो करने मत जाओ। यू इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन डू विद द फ्यूचर। आप फ्यूचर में चले जाओ, आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्यूचर। तो सेम स्टॉक को अगर मैं फ्यूचर में प्लान करता हूं VBL, लेट्स चेक कि क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है और क्या एंट्री हो सकती है। तो सेम स्टॉक अगर मैं फ्यूचर में ले जाऊं तो मुझे 85,000 में सेम क्वांटिटी मिल जाएगा, 1000 क्वांटिटी जी। तो मेरा 4 लाख मुझे इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। सो आई कैन सेम थिंग आई कैन डू विद 85,000। अब इसके रिजल्ट पे आ जाते हैं कि मैंने 4 लाख की चीज अरेंज कर दी 80,000 में आपके लिए रिस्क है 8,000 रुपीज का, दैट इज 10% ऑन योर कैपिटल। बट आपका अगर टारगेट हो जाता है, इफ यू मेक दिस अमाउंट, आपने टारगेट 60 रुपीज कर दिया या अकॉर्डिंग टू आपने 40 रुपीज भी कर दिया। हम लोगों ने 15 रुपीज का रिस्क लिया था। लेट मी वंस मोर टाइम, दिस इज द 15 रुपीज रिस्क और इसके अकॉर्डिंगली मैं टारगेट कर देता हूँ 30 रुपीज का। 1:2 द सिंपल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो and my trade will be here. So what you invested in this, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया for making the 1000 quantity? You invested 81,000 rupees. जी। But when your stock moved to your target, you make 37,000 out of this. Can you imagine what kind of return you made on this? It's approximately 50% return on the year investment. Yeah. How much did you required? You required 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12th day. You are able to make a 50% return. बैंक में हम लोग जाते हैं तो साल का मिलता है 6%। You have a 12 months still remaining in your hand. पूरे 12 महीने अभी आपके पास है। जो मार्केट का ताकत है आपको देने का, वो आप 6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, what the retailers are not doing, but the FIs and DIs are doing consistently. Correct. So मार्केट में इतना ताकत है कि आपका पैसा 2 दिन में डबल भी कर सकता है। रिटेलर को उसका कोई नॉलेज नहीं है। Right. So what they want, the right knowledge, the right education and the right guidance. तो उनको जरूरी है कि पहले समझो किस तरह से काम किया जाता है कि because when you get a train, तो आपका आज जो 1 मिनट का वैल्यू 20, 2,000, 3,000, 4,000 रुपए है, कल जाके आप ट्रेन हो जाओगे तो उसी 1 मिनट का वैल्यू 28,000 या 2,80,000 भी हो सकता है। ठीक है। सो व्हेन यू ट्रेन योरसेल्फ, आपका वैल्यू जिस दिन आप बढ़ाना चालू कर दोगे, आपके हर मिनट का वैल्यू आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। Got it. So that what they need to understand the right knowledge. हमको लगता है कि मार्केट में सिखाने वाले बहुत कम रियल प्लेयर्स है जो मार्केट में सही डायरेक्शन या सही गाइडेंस दे पाते हैं। तो एवरी प्लेयर हु हैव बीन ट्राइंग टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, बट उनको सही नॉलेज या सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। सो दैट्स व्हाई द पीपल का ट्रस्ट भी थोड़ा सा रिटेलर्स का हिला हुआ है कि मार्केट में हमको सही राइट डायरेक्शन या सही गाइडेंस कौन कर पाएगा। करेक्ट। ये हमने एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी समझ ली एंड आई एम अमेज्ड कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है फॉलो करना लोगों के लिए और इतने अच्छे रिटर्न्स बना के दे रही है। 10-12 दिनों के अंदर 30-40% रिटर्न्स बनते हुए देखे हैं हमने। और ये एक ऐसा पैटर्न है जो सिंपली हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। एनी इंस्ट्रूमेंट।
लोग आजकल ज्यादातर लोगों का जो रुझान है, जो बेंट है, दैट इज टुवर्ड्स ऑप्शंस. Yes. तो why don't you actually pick up any strategy that you have been using अपने आप एसेट, अपने कैपिटल में जो आप डिप्लॉय करके बैठे हैं ऑप्शंस में? ऑफ कोर्स रिस्क वहां पे ज्यादा रहता है. आपने बोला कि कैपिटल पूरा वॉश आउट हो सकता है, Right. बट फिर भी जो लोग रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके अगर यूज करना चाहें ऑप्शन की कोई स्ट्रेटजी, तो डू यू हैव समथिंग टू शेयर देयर? डेफिनेटली मैं तो ऑप्शन ट्रेडर को पहले यही सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडर बनने के पहले ऑप्शन को समझ लो. सिर्फ बायर सेलिंग आपके जो सेंटिमेंट है उसके हिसाब से ऑप्शन मार्केट नहीं चलती. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू बी मास्टर इट. यस. तो ऑप्शन इज ऑल्सो बिन द लाइक अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस. तो ऑप्शन समझना है आपको तो पहले प्राइस को समझना पड़ेगा. और ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइस के ऊपर ऑप्शन चलेगा, बट एक्चुअली प्राइस के ऊपर ऑप्शन नहीं चलता है. प्राइस इज द मेन प्रोडक्ट. द मेन प्रोडक्ट ऑफ द ऑप्शन इज द मोमेंटम ऑफ द प्राइस. तो लोगों के दिमाग में मोमेंटम गायब हो जाता है. इज नॉट बिन देयर कॉन्सेंट्रेट इन द मूवमेंट. अरे प्राइस में अगर मूवमेंट नहीं होगा तो आपका ऑप्शन कैसे चलेगा? सही बात है. So what we have to understand, to become the option trader, you have to mastering the momentum of the price, then you will get the result. तो आपको पहले momentum समझना पड़ेगा प्राइस का. That is the main product. Price is not the main product for the option. The momentum of the price is the main product of the option. Right. तो उसको समझते हैं कि मेन प्रोडक्ट में आप उसके लिए काफी मास्टरी करनी पड़ती है कि प्राइस में मूवमेंट कब आएगा, कब नहीं आएगा, कब मार्केट चलेगा नहीं चलेगा. इट हैज द बिग, उसके लिए बहुत बड़ी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी. सो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड विद अ वेरी शॉर्ट कि प्राइस में मोमेंटम कब आते हैं. देयर इज द न्यूज और इवेंट और डेली मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं. सो अगर आप कैंडलस्टिक समझ जाओ तो कैंडलस्टिक आपको ये समझा देगी कि मार्केट में कब बुलिश मोमेंटम है और कब बेरिश मोमेंटम है और कब मार्केट कोई मोमेंटम करने वाला भी नहीं है. ठीक है. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द कैंडलस्टिक डीपली, जैसे मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न दिखाए, इतने पैटर्न मास्टर करने की जरूरत नहीं है. और ये पैटर्न रेगुलरली बनते हुए आपको दिख जाएंगे मार्केट में. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में कब मोमेंटम आने वाला है और कौन से डायरेक्शन में आने वाला है. ठीक है. ऑप्शन ट्रेडर के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, लाइक कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि प्राइस में जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो प्राइस आपके राइट डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, दैट यू कैन विन. मार्केट साइडवेज हो गया तो भी आप लॉस करोगे, मार्केट आपके निगेटिव डायरेक्शन में चले गया तो भी आप लॉस करोगे. करेक्ट. सो सबसे बड़ा जो चैलेंज है एज अ ऑप्शन बायर, आप समझ लो कि आप उसको कितना मास्टरी करना पड़ेगा. कि उसको रॉन्ग होने का कोई चांस ही नहीं है उसके पास. नहीं है, बिल्कुल. वो सोच भी नहीं सकता कि जब मैंने ऑप्शन बाय किया तो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस रुक जाए. एक ही ऑप्शन है कि प्राइस उसके मोमेंटम में ही जाए. करेक्ट. दैट इज द फर्स्ट दे हैव टू मेक इन माइंड कि जहां वो डिसीजन ले रहा है वहां से प्राइस उसके डायरेक्शन में ही जाएगा तो ही वो मार्केट में जीत पाएगा. करेक्ट. सो दैट उसके लिए उसको कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा. देन व्हेन वी अंडरस्टैंडिंग द ऑप्शन, देयर आर सम स्ट्रैटेजीज. अब ये कितना आप समझ लीजिए इसके लिए कितना एक्यूरेसी लगता है आपको. यू नीड 100% एक्यूरेट टू बिकम द ऑप्शन ट्रेडर. और हम लोग लगता है कि 50% एक्यूरेसी में हम लोग ऑप्शन जीत पाएंगे. पॉसिबल ही नहीं है. हाउ कैन यू बिकम द ऑप्शन ट्रेडर व्हेन यू अंडरस्टैंड द प्राइस? और बहुत सारे रिटेलर दे आर नॉट स्टडीड इन द डीप नॉलेज ऑफ द ऑप्शंस. तो उनके लिए हम लोग नॉर्मली जब हम लोग बड़े ट्रेड्स प्लान करते हैं तो वी ट्रेड विद अ जीरो लॉस ऑफ द ऑप्शन, दैट व्हाट वी कॉल द हेजिंग्स. तो उनके लिए दूसरा सेगमेंट बन के आ जाता है कि आप अगर नहीं समझ पा रहे मार्केट में तो अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करके चलो, उसको हेज करके चलो, दैट यू विल नॉट मेक एनी लॉसेस इनटू द मार्केट. करेक्ट. तो पहले अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करो क्योंकि आप 100% हारने तो वाले हो, क्योंकि आप 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते ऑप्शन में. दैट इज द फर्स्ट थिंग टू मेक इन योर माइंड कि आप ऑप्शन में हमेशा लॉस करके ही आओगे. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड द अदर वे कि अगर हम लोग इसको ऐसा कॉन्सेंट्रेट कर ले कि अगर मैं गलत भी हो जाऊं तो भी मैं सही हो जाऊं. इसको हम लोग बाजीगर ट्रेडर बोलते हैं. सो दैट इज पॉसिबल इन द ऑप्शन व्हेन यू प्लान द ट्रेड विद द हेज. तो एक दो स्ट्रेटेजी मैं आपको प्लान करके भी दिखाऊंगा कि आप जीरो लॉस में भी कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हैं. बिल्कुल. लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन. लेट्स स्टार्ट. ऑप्शन में प्लान करने के बहुत सारे तरीके हैं. जितनी प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजीज प्लान करने को समय लगता है उससे कम प्लान लगता है इसको प्लान करने के लिए, ऑप्शंस को. एंड देयर इज मोर वैरायटी. ऑप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अगर गलत भी हो तो भी आप सही हो सकते हो. दैट इज व्हाट वी वांट, वी कॉल इट एज एडजस्टमेंट.
ठीक है. तो आपके पास ऑप्शन बायर में ये बेनिफिट है कि आपके पास एडजस्टमेंट इनफाइनेट है. यानी अगर आप लॉस भी कर रहे हो, आप गलत भी जा रहे हो, तो भी आपके आप ट्रेड को मॉडिफाई करके उसको आप सॉरी उसको कुछ तो और वर्ड बोलते हैं हम लोग. When you are making the wrong, you can make the adjustment and you can sit with the right path. Correct. So that is what we call the adjustment in the option. Now, अगर मैं कोई भी ऑप्शन का प्लान करता हूँ, let's say the builder over here. अगर let's suppose मुझे निफ्टी प्लान करना है, I want to plan on the निफ्टी, मेरा व्यू जो है मार्केट में बुलिश मोड है. So when I've been picking the option, आप कर सकते हो इसको फ्यूचर भी कर सकते हो, इसको आप that is हेजिंग में आप फ्यूचर टू फ्यूचर एंड ऑप्शन टू ऑप्शन भी आप हेज कर सकते हो. सो आई प्रीफर टू फ्यूचर एंड ऑप्शन हेजिंग्स. आप इसको ऑप्शन टू ऑप्शन भी कर सकते हैं. लाइक मैंने कोई पोजीशन ऐड की है निफ्टी, अगर मैंने बाय की है. सो मेन चैलेंज क्या होता है कि जहां से मैंने निफ्टी बाय की है उस डायरेक्शन में ही जानी चाहिए. अगर मैंने निफ्टी को सेल किया है तो निफ्टी नीचे ही गिरना चाहिए. एंड इट इज नॉट एक्यूरेट कि मार्केट मेरी 175% आप द लूजर ऑफ द मार्केट. तो 75% ऑफ द टाइम मार्केट मेरी सुनेगा नहीं. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया इस पे 2,22,000 का, 2,20,000 टू मेक अ वन निफ्टी ट्रेड. अब मुझे तो सबसे पहले डिफाइन करना है कि सबसे पहले मैं इसका रिस्क कैसे कम कर सकूं. दिस इज द अनलिमिटेड रिस्क कि मैंने अगर मेरा ट्रेड गलत हुआ तो आई कैन फाइंड द अनलिमिटेड रिस्क एंड आई कैन फाइंड द अनलिमिटेड प्रॉफिट ऑल्सो कि मेरे डायरेक्शन में गया. तो सबसे पहला जो हम लोग बोलते हैं कि हर ट्रेडर का जो धर्म होता है हमारे कम्युनिटी में, सबसे पहले अपनी रिस्क को डिफाइन कर लो. सो व्हेन यू फाइंड द रिस्क यू हैव टू कैप इट. तो आपके पास जैसे हम लोग अपने लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं वैसे हम लोग अपने ट्रेड का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं. तो इट बीन वेरी मैंडेटरी व्हेन यू ट्रेड विद द फ्यूचर एंड ऑप्शन यू हैव टू टेक द इंश्योरेंस. तो आपके पास दो कंपनियां हैं, वन इज कॉल एंड वन इज पुट. अब मैंने अगर बाय का ट्रेड लिया तो मेरा डर ये है, मेरा फियर ये है कि मार्केट नीचे चला जाएगा. तो मैं पुट कंपनी के पास जाता हूँ कि भाई नीचे गया मार्केट तो मुझे इंश्योरेंस दे दो. जैसे यहाँ पे मैंने एक 26,200 का एक निफ्टी फ्यूचर बाय किया, सो मैं जाऊंगा और 26,200 का एक पुट बाय कर लूंगा. मेक इट हियर 26,200 ATM. दिस इज द पुट आई कैन बाय. तो जैसे ही मैं ये ऑप्शन टेस्ट करता हूं मार्केट में, मैंने एक इंश्योरेंस बाय किया. व्हाट हैपेंड टू द ट्रेड कि जो मेरा अनलिमिटेड रिस्क था मैंने इंश्योरेंस कर दिया कि मार्केट निफ्टी यहां से जीरो भी हो जाता है, आई कैन लिमिट माई इंश्योरेंस टू 30,000 ओनली. यस, कि मुझे अनलिमिटेड 2 लाख 3 लाख 4 लाख लॉस करने का जरूरत नहीं है. कैप हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी बाकी ऊपर का पैसा देगा. आई विल बी लिमिटेड to the 30,000 pay only. Yeah. Now what happened here again, जैसे ही मैंने ये चीज की, मेरा 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 59,000 में कन्वर्ट हो गया. So I can save the lot of things. कि मैंने 2 लाख की जगह इन्वेस्टमेंट 60,000 पे ला लिया. That is a good thing. Correct. Now अभी बहुत लोगों को लग रहा होगा सर इसमें भी 30,000 का तो रिस्क है. 50% रिस्क ऑलमोस्ट. अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखोगे तो 50% का रिस्क है. Correct. So the next another thing, तो you have to reduce your risk. Yes. That is the धर्म of your trader. Yes, as a trader, yes. As a option trader तो आपका धर्म भी डबल हो जाता है वहां पे. बिल्कुल. So पहले हम लोगों ने क्या किया था कि एक पुट बाय किया था 220 रुपीज का, जिसके लिए मैंने मार्केट को पैसे दिए थे एज अ प्रीमियम टू बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट. जी. अब मैं क्या करूंगा, यही 200 रुपए मार्केट से वापस लेके आ जाऊंगा. So what how can we do? हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग करेंगे एक पुट 220 का बाय किया था तो उसके ऊपर के दो ऑप्शन में मार्केट में सेल करके आ जाऊंगा. लेट्स सपोज 26,200 का पुट बाय किया तो 100 यहाँ पे दिख रहा है 26,900 और वी कैन डू विद द 26,800 आल्सो. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, इसको हम लोग 26,500 भी कर सकते हैं बट फाइन, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ. सो इफ आई बीन सेलिंग द 2 कॉल ऑप्शन over here, let's add to the positions and what happened to the market. Let's check the trade. So और थोड़ा सा नजदीक कर देते हैं.
Now what I did कि मैंने मार्केट को 200 रुपीज इंश्योरेंस लेने के लिए दिए, ऊपर मैं कॉल कंपनी के पास गया और ये 200 रुपए के 2 कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिए. करेक्ट. सो व्हाट हैपन, मेरा जो सबसे पहला डर था कि मुझे मार्केट नीचे जाएगा तो लॉस हो जाएगा, अब मार्केट नीचे जाएगा तो क्या होगा. Even we are trading the Nifty at 26,200. Even the Nifty fall by 1,000 or 2,000 or Nifty tomorrow going to be zero, I will make 5,000 rupees. Profit. Yes. So I don't fear what the direction of the market can do. I've been stressful, not non-stressful. यहाँ पे मेरा स्ट्रेस खत्म हो गया कि सबसे जो डर था मेरा कि 75% टाइम आई एम रॉन्ग होता हूँ, तो अब 75% रॉन्ग हो जाओ तो भी आप प्रॉफिटेबल हो. करेक्ट. सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस कि मुझे पहले प्रोटेक्शन करना है अपना कैपिटल और पहले रिस्क को कम करना है, सो ऑप्शन से ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है. और लोग इतने डरे हुए हैं कि ऑप्शन से डर डर के वो लॉसेस करते जा रहे हैं. सो ये जो ऑप्शन है इसको आप अगर सही तरीके से ट्रेड करना सीख लो तो इससे ब्यूटीफुल ट्रेडिंग हो नहीं सकती मार्केट में. ये इतना ब्यूटीफुल वेपन है, इसको आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए. बट सम टाइम इट टेक द मोर इन्वेस्टमेंट्स. तो लोगों का माइंडसेट ये नहीं है कि मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कम पैसे कमाऊं. लोगों का माइंडसेट है ऑप्शन में कि मैं कम पैसे डाल के बड़े पैसे बनाऊं. दैट इज कंप्लीटली रिवर्स. अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं कि आप 5,000 से 50,000 बनाना चाहते हो या 50,000 से रोज 5,000 बनाना चाहते हो, what will be looking more easy? The second one is better. Second one is better and that will possible. Yeah. But it will very difficult when you think that कि 5,000 से मेरे को 50,000 बनाना है. What kind of accuracy you need to do this? Yes. और वो accuracy कहाँ से आएगा ऑप्शन में जब आपको ऑप्शन में ट्रेड करना ही नहीं पता. So that is the first step. Correct. Making to the options so irrelevant for their trading. वो समझते नहीं है, प्लानिंग नहीं है उनके पास और किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं है एंड दे डज डायरेक्टली डूइंग द बाइंग एंड सेलिंग. दैट्स व्हाट वी सेड कि ट्रेडिंग इज नॉट गेम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ एवरीथिंग. ऑसम, ग्रेट. आपने समझा दिया अच्छे से कि ऑप्शंस में क्योंकि रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो बिगिनर्स को थोड़ा सोच समझ के ही आना चाहिए इसमें. और जो माइंडसेट है, जो सही माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा आपको. आप कंसिस्टेंट इनकम तभी जनरेट कर पाएंगे जब आपके पास एक डिसेंट कैपिटल है और आप अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं. डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे, कम रिस्क को अपनी प्रायोरिटी बनाइए रादर देन एक्चुअली ग्रेटर प्रॉफिट्स और लार्ज प्रॉफिट्स. एग्जैक्टली सर. एक मैं आपको अब ऑप्शन ट्रेडर ये पॉइंट डिस्कस करना इस पॉडकास्ट में बहुत जरूरी है बिकॉज देयर आर द थिंग्स the peoples are making mistake consistently in the market and they are consistently losing. तो बहुत बार मेरे सामने ये सवाल आता है कि सर मेरे पास 50,000 है, मैं ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहता हूँ, what can I do? मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे करूँ? करेक्ट. So what I've been suggesting them कि आपका जो ट्रेड प्लान होता है, आपका ट्रेड प्लान डिपेंड करता है आपके रिस्क पे. तो नॉर्मली ट्रेडर ये मिस्टेक करते हैं कि उनको जैसे हीरो जीरो ट्रेड्स जो एक्सपायरी के दिन के करने हैं या नॉर्मल ट्रेड पे भी ट्रेडिंग प्लानिंग दे आर बीन डूइंग मेकिंग कि अगर वो 1,000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है तो हमेशा 1,000 क्वांटिटी से ही ट्रेड करेगा. अब उसका ऑप्शन का भाव कम ज्यादा है या वो रैंडमली कोई भी क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेगा कि आज मार्केट बहुत ऊपर लग रहा है, मेरे को 500 के इन द मनी ऑप्शंस ट्रेड करने हैं, तो वो कभी थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेगा. आज मुझे एक्सपायरी करनी है तो मैं 1,000 क्वांटिटी से कर लेता हूँ ताकि मैं लाखपति बन जाऊं, मैं आई बीन बिकम द बेस्ट ट्रेडर इन द मार्केट. बट ये क्वांटिटी का जो कैलकुलेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके रिस्क के साथ, क्योंकि ऑप्शन इज अ गेम ऑफ रिस्क. तो एक छोटा सा मैं आपको एक्सेल शीट बता देता हूँ जो मैं मेरे बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ शेयर करता हूँ. तो नॉर्मली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना कि आपका जो क्वांटिटी डिफाइन होता है वो आपके रिस्क से डिफाइन होता है. बिल्कुल. एंड द पीपल्स आर मेकिंग मिस्टेक ओवर हियर. लाइक यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला बना के डाला है, सिंपल एक फॉर्मूला है. अब स्टॉक प्राइजेस ऑप्शंस के एक्सपायरी के दिन अलग अलग होते हैं, बट यू कैन नॉट एबल टू चेंज द रिस्क. अगर आप कोई ट्रेड 5,000 रिस्क पे करना चाहते हो, सो व्हाट द पीपल्स आर मिस्टेकिंग, लाइक आज जो हीरो जीरो मुझे ट्रेड करना है, मैं 100 रुपए का ऑप्शन प्लान करना चाहता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट का, दैट इज 80 रुपीज इज माई स्टॉप लॉस. सो व्हेन आई प्लान द मेकिंग विद द 20 पॉइंट स्टॉप लॉस, माई रिस्क इज 5,000 रुपीज. तो अकॉर्डिंगली आई हैव टू ट्रेड ओनली 250 क्वांटिटीज. ठीक है.
ठीक है, ठीक है। 250 क्वांटिटीज के हिसाब से आपको ट्रेड आ जाएगा। आपने रिस्क पहले डिफाइन कर लिया है, फिक्स्ड कर दिया है। हाँ, तो भाई तो मेरे ये पूरे कैपिटल के हिसाब से दिस इज द रिस्क दैट आई कैन अफोर्ड। यस। अब इसी स्टॉक का भाव एक्सपायरी के दिन हो जाता है 40 रुपीज, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो हो जाता है 15 रुपीज का, अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो। ठीक है। ठीक है, नाउ व्हाट दे आर थिंकिंग कि 100 रुपए की चीज थी 40 रुपए की हो गई, लेट्स मेक द हाईएस्ट क्वांटिटी। 40 रुपए में मिल रहा है, हीरो जीरो कर लेते हैं, 2-3 हजार क्वांटिटी कर लेते हैं, बट योर रिस्क इज नॉट अलाउिंग यू टू टेक द हायर रिस्क, यू हैव अ डिफाइन योर क्वांटिटीज। करेक्ट। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि भाव अगर नीचे हो गया तो हमको ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करना है। तो यू हैव बीन डिफाइन योर रिस्क। आपका रिस्क नहीं बढ़ सकता, अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। दैट इज मिसमैनेजमेंट दे आर ट्रेडिंग इन द ऑप्शंस। नाउ द सेम थिंग, हीरो जीरो के दिन यही चीज 10 रुपए की हो जाती है, और आपका स्टॉप लॉस अगर 5 रुपए डाल देते हो आप, इफ यू आर मेकिंग द 5 रुपीज लॉस, तो आपको कितना क्वांटिटी करना चाहिए? आपका रिस्क तो 5000 है। अब जब क्वांटिटी बढ़ाने की बारी आती है तो लगता है कि नहीं सर, थोड़ा सा कमी करते हैं, हो सकता है जीरो हो जाए। तो उसको लेना चाहिए 1000 क्वांटिटी, वो करता है 500 क्वांटिटी। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, जहां और ऑप्शन आपको बहुत कम समय देगा टू टेक डिसीजंस। इट विल नॉट गिव यू द टाइम टू थिंक करूं कि मैं कितना क्वांटिटी। तो द इंस्ट्रूमेंट यू नीडेड, द सिस्टम यू नीडेड टू बिकम द ऑप्शन ट्रेडर। तो आपके पास सिस्टम नहीं होगा, आपके पास टारगेट नहीं पता होगी, आपके पास ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस नहीं पता होगे, तो हाउ कैन यू बिकम द ऑप्शन ट्रेडर? करेक्ट। वो एक्यूरेसी का गेम है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज द मेन गेम ऑफ एक्यूरेसी, और हमारे पास वही नहीं है, हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है, और हम चाहते हैं कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लाखों रुपए कमा ले। नहीं, ये काफी हेल्पफुल है सर, इफ यू डिफाइन द रिस्क। यस, आप सिर्फ क्वांटिटीज में ये फॉर्मूले आप खुद भी बना सकते हैं। एंड एवरी ट्रेडर हैड टू मेक अ प्लान, अपना रिस्क डिफाइन करे, अपना प्लानिंग करे, और उस प्लान को फॉलो करे, दैट मेक द सक्सेसफुल ट्रेडर इन द मार्केट। आपको प्लान करने का जरूरी नहीं है। एंड मैं हमेशा मेरे सारे ट्रेडर्स को बोलता हूं कि व्हेन यू मेक द प्लान, देयर इज ओनली प्लान ए इन द मार्केट फॉर योर लाइफ, देयर इज नो प्लान बी। ऑसम, ग्रेट। तो देयर इज नो प्लान बी। आपने जो प्लान बनाया आपको वही फॉलो करना है जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। इफ यू चेंज द प्लान, योर डेस्टिनी विल चेंज। या फैंटास्टिक। नो, आई थिंक दिस इज अमेजिंग सर। दोनों स्ट्रैटेजी समझ के काफी सिंपलिस्टिक स्ट्रैटेजीज हैं जो लोग फॉलो भी कर पाएंगे, और यही पर्पस भी है इस चैनल का कि बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं और जो लोग लॉसेस बनाते जा रहे हैं बिकॉज उनको क्लैरिटी नहीं है मार्केट में, उनको क्लैरिटी मिल पाए, सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके वो मे बी लॉस से प्रॉफिट में आ पाए, एक अच्छे रिटर्न्स बनाना चालू कर पाए, while following the entire risk management plan, right psychology also. So great. एक leaving note पे, if you want to share a couple of maybe 2-3 tips. Amazing sir. तो I think दोनों strategies हमने समझ ली सर। एक तो जो प्राइस एक्शन की, और हमने समझा कि कोई भी एसेट क्लास में, इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको मास्टरी करनी है, ट्रेडिंग में मास्टरी करनी है, तो उसका जो प्राइस है, राइट, उसकी मास्टरी आप कर लो। कैंडल्स क्या आपसे बोल रही हैं वो आप समझ लो, उसके सेंटिमेंट समझ लो, तो आपको पूरा चार्ट किस तरफ मूवमेंट होने वाली वो समझ आ जाएगी। और दूसरा, आपने बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझाया जिसमें हमने लॉस भी मिनिमाइज कर लिया, कम कैपिटल के साथ भी अच्छे रिटर्न्स बना पा रहे हैं हम। Great. I think that provides a lot of clarity to someone who's just starting or someone who's stuck in losses and then want to get into profits. कुछ एक final set of advice या आप कुछ tips अगर आप देना चाहें, क्या चीज़ें follow करें आगे अपने ट्रेडिंग प्लान में for 2026, वो क्या होंगी सर? देखिए, ट्रेडिंग को सबसे पहले तो हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि डोंट मेक कॉम्प्लिकेटेड। ट्रेडिंग इज बिन द वेरी इजी जॉब। जो हम लोग अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वन थिंग विद द मेनी टाइम। आपको एक चीज पे बार बार कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और एक ही चीज को बार बार करना चाहिए। सो आप क्या, एज अ ट्रेडर यू हैव टू थिंक फॉर द प्लानिंग। आपका प्लान कैसा हो,
सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का सेंटीमेंट आप समझने की कोशिश कीजिए, जो आपको कैंडलस्टिक बता देगा। सेंटीमेंट के बाद आपके स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस में आप आ जाओगे। व्हेन यू सिलेक्ट द प्रॉपर स्टॉक यू विल गेट प्रॉपर डायरेक्शन। प्रॉपर डायरेक्शन हो गया तो आपको मैंने अभी रिस्क मैनेजमेंट सिखा दिया, तो यू विल गेट द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बाद उसमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दे, यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट। व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर बीन फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स, एंड इफ यू वांट रिजल्ट यू हैव टू चेंज समथिंग विद इन यू। जो ट्रेडर नहीं करना चाहता वो अपनी ही पुरानी स्ट्रेटेजीज में खुश है, खुश नहीं है, वो उलझता जा रहा है। हाँ. इट इज नॉट बिन, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। Fair, fair. सो इफ यू वांट अ रियल रिजल्ट इन द मार्केट यू हैव टू चेंज समथिंग। व्हेन यू स्टार्ट changing something in your life you are start getting results. Correct. So that is what I've been advising you कि आप जहां पे स्टक हो आप उसको थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई, उसको चेंज करके उसको कैसे प्लान कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है कि आपको कुछ एक चीजें चेंज करनी पड़ेंगी जिसके वजह से आपके रिजल्ट। what the peoples are doing, they are making the same mistake again and again. So market will not forgive you. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, if you are making the same mistake again and again you will become the beggar of the market. And if you learn from the mistake and you make every day the new mistake, you will become the millionaire in the market. स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी इतनी चैलेंजिंग है कि ज्यादातर लोग प्रॉफिटेबल होने से पहले ही क्विट कर देते हैं, और इसका नंबर 1 रीजन है लैक ऑफ नॉलेज और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ये पॉडकास्ट सीरीज शुरू की थी कि कैसे हम इंडिया के टॉप ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को यहाँ बुला के उनसे उनकी अप्रोच और उनकी जर्नी से लेसन्स ले सकें। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए जिनको ये हेल्प कर पाए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि जब भी हम किसी ग्रेट इन्वेस्टर ट्रेडर का पॉडकास्ट अपलोड करें तो आप इसमें नोटिफाई हो जाएं।